इस वीडियो में हम क्लास 12 का 2021-22 में जो टर्म 1 का कंप्यूटर साइंस का पेपर हुआ था उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर मैं इस पेपर की बात करूं तो इस पेपर के अंदर टोटल हमारे पास 50 क्वेश्चन थे, जो कि 50 के 50 क्वेश्चन क्या थे, आपके एमसीक्यू क्वेश्चन थे, यानी जिनके क्या है, आपके ऑप्शंस गिवन थे और आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। आउट ऑफ दिस 50 क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन था आपका, वो क्या था, क्वेश्चन नंबर 50, वो क्या था, आपका केस स्टडी का क्वेश्चन था, जो अपने आप में क्या कर रहा है, 5 क्वेश्चन कंटेन कर रहा है। तो इस टाइप के जो पेपर्स हैं आपके, जो कोविड के ड्यूरेशन में हुए थे, ये आपके एमसीक्यू की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो विदाउट ए फर्दर अडू, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, four options have been given to you and it has been asked, out of the given four option, which one is the invalid identifier? So in order to answer this one, first of all we need to understand what is an identifier in Python. अगर मैं बात करूं पाइथन की, तो इन पाइथन एवरीथिंग इज इन ऑब्जेक्ट, चाहे वो फंक्शन हो, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो मॉड्यूल हो, चाहे इवन क्लास हो। तो आइडेंटिफायर क्या हो गया, आइडेंटिफायर आर द नेम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। So now name, in order to name these objects, we need to follow certain rules. Now let's take a look at these rules one by one. Okay, so first thing is, जो भी आपका आइडेंटिफायर है, it can start with either upper case alphabet, lower case alphabet or an underscore sign. Okay, now these identifiers can contain digits after starting with either uppercase, lowercase or underscore, but an identifier cannot start with a digit. हमेशा ध्यान रखिएगा, जो identifier हैं, they may contain digits, but it cannot never start with a digit. Okay. Now the second thing is, it cannot contain any special symbol other than underscore, or even you cannot include white space as well. Okay. And the third one is, it should not be a keyword. तो keyword क्या होते हैं basically, which has the some special meaning, and those special meanings has been reserved to interpreter of Python. Okay, तो अगर मैं Python की बात करूं तो टोटल वी हैव 33 कीवर्ड्स, आउट ऑफ विच ट्रू फॉल्स नन आर क्या हो रहे हैं, आपके कैपिटल केस से स्टार्ट होते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ देम आर इन द स्मॉल केस। नाउ आई वांट यू टू टेक नोट ऑफ दिस लिस्ट। इसके अंदर जो कीवर्ड्स मेंशन है आपके, जस्ट टेक ए नोट ऑफ दोस कीवर्ड्स, so that whenever you see the questions on the keywords in Python, you will be able to answer those questions. Okay, now coming back to our question, so let's see the option number A. Option number A follows each and every rules of the identifier. It starts with a small case. It does not contain any digit. It does not contain any special symbol, or even it is not a keyword. So this is your valid identifier. Option number B is your invalid identifier. Why? Because it is a keyword. Since break क्या है आपका, एक keyword है. Same for option number C. Option number C follows each and every rule, and same for the option number D. Option number D also follows each and every rule. इसके अंदर digits कहाँ आ रही है आपकी, end of the identifier. It, we have already told you कि जो identifier है आपके, it can contain digits but it cannot start with a digit. Hence तो option number B is correct, because the reason is कि break क्या है आपका, keyword है, and as we already told you, keyword cannot be used as an identifier. Okay. Okay then, let's see the next one. So in this particular question, four options have been given to you and it has been asked, out of these given four option, which of the following option is method of the pickle module? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मेथड है या फंक्शन है आपका पिकल मॉड्यूल के लिए? So in order to answer this one, we need to know about the different type of files and what are the different reading and writing operations they have. Okay. So I want you to take a look at this and pause this video, और आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट थिंग इज, इफ यू हैव द टाइप फाइल .txt, तो उसका मॉड्यूल क्या है आपका, IO मॉड्यूल, विच इज ऑलरेडी स्टैंडर्ड मॉड्यूल होता है जिसको आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इन .txt फाइल वी हैव थ्री फंक्शंस फॉर रीडिंग ए डाटा. फर्स्ट वन इज रीड, then read line, then read line. Similarly for writing we have two functions, write and write lines. Then we have binary file, which is, इसका एक्सटेंशन क्या क्या होता है आपका, .bin और .dat. इनको यूज करने के लिए we need to import pickle module, and we have load function to read the data from the binary file and dump function to write the data into the binary file. For CSV file we have extension .csv, इसका मॉड्यूल भी क्या होता है आपका, CSV. In CSV module we have one function for reading the data, which is reader function, and for writing we have one method which is writer method. Now with the help of writer method you can use another two methods, which one is write row and write rows. I hope you got the idea regarding the all the functions for reading and writing in the text file handling, चाहे text file हो, चाहे binary हो, चाहे हो CSV file हो.
Now coming back to our question, so which of the following function is method of the pickle module? So this is for CSV file. It is a reader function for CSV file. This is also for CSV file. This is for pickle module, or you can say binary file. And this is one for .txt file. Hence, in this case, option number C is correct. Okay, then let's see the next one. So in this particular question, a string has been given to you which is named as, इसका data क्या है आपका welcome, and it has been asked कि based on this slicing what will be the output of this particular question. Okay, तो if you recall slicing कैसे होती है आपकी, slicing के अंदर आपके पास तीन objects होते हैं, start, stop and step. तीनों ही क्या होते हैं आपके ऑप्शनल इन नेचर होते हैं, यानी कि अगर कोई वैल्यू गिवन नहीं होती तो उनकी क्या वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट, इट इज जीरो, इट इज एंड ऑफ द डाटा या एंड ऑफ द स्ट्रिंग, एंड इसकी वैल्यू क्या होती है +1. नाउ अगर मैं बात करूं वैल्यू कैसे ट्रेवल करती है, स्टार्ट टू स्टॉप -1. सो इन दिस केस अगर मैं देखूं वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1, इंडेक्स नंबर 1, यानी कि अगर तो पहले मैं इसकी इंडेक्सिंग कर देता हूं 0 1 2 3 4 5 and 6. It means it contains 7 elements starting from index 0. So it is starting from index number 1. Since no stop value has been given, तो कहां तक जाएगा आपका end of the string तक, and step value क्या given है 2. तो first value would be E, then it will go for C, and then it will go for M. Hence the right answer would be E, C and M. Hence the right answer would be option number D. Okay, then let's see the next one. So in this particular question, four options have been given to you, and it has been asked out of these given four statements, which one is the incorrect one. Okay, so if you see the statements, you will see these statements are regarding your writing a content into the text file. So basically this question is based on the which mode allow us to do writing operations in a text file. तो अगर मैं बात करूं एक्सेस मोड की, तो वी हैव थ्री मेजर एक्सेस मोड. फर्स्ट वन इज R, A एंड W. बिफोर गोइंग टू इनटू दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बी अवेयर कि एक्सेस मोड यूज कैसे किए जाते हैं आपके. अगर आपने रिकॉल करो ओपन फंक्शन कैसे काम करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल नेम देन फॉलोड बाय एक्सेस मोड. ठीक है, अब एक्सेस मोड का काम क्या है यहाँ पे कि आप पर्टिकुलर फाइल जो है अपनी वो किस पर्पस के लिए ओपन करना चाहते हो, रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए या किसी और काम के लिए. ओके, तो इन जनरल एक्सेस मोड क्या होता है आपका ऑप्शनल होता है. अगर आपने कोई एक्सेस मोड पास नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट मोड क्या रहता है उसका आर मोड. आर स्टैंड्स फॉर रीड मोड. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द एक्सेस मोड्स वी हैव, तो वी हैव थ्री मेजर एक्सेस मोड. फर्स्ट वन इज R, which stands for read mode, then append and then writing. Okay, रीड मोड क्या अलाउ करता है आपको रीडिंग ऑपरेशंस ओनली. और अगर मैं बात करूं फाइल हैंडलर पोजीशन की, तो फाइल हैंडलर कहां पे होता है, फाइल हैंडलर यानी कर्सर हो गया आपका, ये होता है आपका बिगिनिंग ऑफ द फाइल पे. सिमिलरली अपेंड के केस में क्या है, इट अलाउस यू ओनली राइटिंग ऑपरेशन, बट डिफरेंस इज इट इज एट द एंड ऑफ द फाइल. In the case of W mode, it is at the beginning of the file. It also provides only writing operation. Now the basic difference between append and write mode is कि append mode में क्या होगा, जो existing data होगा वो change नहीं होगा. But in the case of W mode, when you are opening a existing file, उस केस में क्या होगा, अगर उस फाइल में ऑलरेडी 10 लाइन ऑफ टेक्स्ट है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर 10 लाइन का डाटा है उसमें ऑलरेडी, तो वो 10 की 10 लाइन क्या हो जाएंगी, ओवरराइट हो जाएंगी, यानी कि वाइप आउट हो जाएंगी. दैट्स वाई वी से कि जो कंटेंट है आपका कहां से स्टार्ट होगा, बिगिनिंग ऑफ द फाइल से. क्यों, क्योंकि जो पुराना डाटा था वो कहां चला गया आपका, वो वाइप आउट हो गया. देन वी हैव प्लस मोड विच कैन बी यूज्ड इन कंजक्शन विद आर, ए और डब्ल्यू. ये क्या करता है आपको, ये तीनों ऑपरेशन, ये आपको दोनों ऑपरेशन अलाउ करता है, रीडिंग एज वेल एज राइटिंग. तो अगर मैं आर प्लस में खोलूंगा तो व्हाट विल अलाउड ऑपरेशंस आर रीडिंग प्लस राइटिंग. ओके, अगर मैं ए प्लस में खोलूंगा तो कौन कौन से ऑपरेशन अलाउड है मुझे, अपेंड प्लस रीडिंग, एंड इस केस में क्या होगा, राइटिंग प्लस रीडिंग. ओके, आई होप यू गॉट द आइडिया रिगार्डिंग द एक्सेस मोड्स इन फाइल हैंडलिंग. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन देन. So now let's see the options one by one and then we'll try to figure out which one is the correct and which one is the incorrect. So in order to write into a text file, we can use mode, W mode. Yes, we can use W plus mode as well. Okay, we cannot use R mode. Why? Because R mode के अंदर में क्या होगा, you will open a file in the read mode और read mode allow only reading operation. So it will not allow you to the write and write lines operation. Okay. Similarly, in the case of R plus, it will be able to apply reading as well as writing operation because of the plus conjunction. Okay, so for this question option number C is the correct one. Okay, then let's see the next one.
So in this particular question, four options have been given to you and it has been asked which one is the correct Python statement to read and display the first 10 characters of a text file notes.txt. तो आपको एक टेक्स्ट फाइल गिवन है notes.txt, इसे क्या करना है, आपको 10 कैरेक्टर्स रीड करने हैं. नाउ आपको बताना है कि आउट ऑफ द गिवन फोर ऑप्शन which one give us the correct syntax or correct statements to read the data from the text file. Okay, so in order to answer this one, first of all, we need to be aware what are the reading and writing operations in the text file, CSV file and the binary file. Okay, so I want you to take a note of this. आप चाहे तो उसका screenshot ले लीजिए और चाहे तो अपनी notebook में note कर लीजिए इसको. Now we have three types of files in our syllabus. First one is .txt, then we have binary file which is .bin and .dat, then we have a CSV file which is .csv. फॉर टेक्स्ट फाइल वी हैव मॉड्यूल आईओ मॉड्यूल, जो क्या होता है आपका बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल होता है जिसको आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती. देन फॉर बाइनरी फाइल वी हैव मॉड्यूल पिकल मॉड्यूल, इसके अंदर आपके पास दो ही फंक्शनैलिटी होती है, लोड एंड डंप. देन फॉर सीएसवी फाइल वी नीड टू हैव सीएसवी मॉड्यूल. ओके, नाउ वन कमिंग टू द रीडिंग फंक्शन दैट दिस मॉड्यूल प्रोवाइड. फॉर टेक्स्ट फाइल वी हैव रीड फंक्शन. बेसिकली क्या करता है आपका पर्टिकुलर n बाइट्स ऑफ डाटा अगर हमें रीड करना है टेक्स्ट फाइल से, फॉर दैट वी विल बी यूजिंग रीड फंक्शन. अगर हमें एक लाइन रीड करनी है पूरी टेक्स्ट फाइल से तो फॉर दैट वी विल यूज रीड लाइन. अगर हमें मल्टीपल लाइंस रीड करनी है एक बार में तो फॉर दैट वी विल बी यूजिंग रीड लाइन. सिमिलरली राइट फंक्शन किस चीज के लिए, आपको टू राइट n बाइट्स ऑफ डाटा इन ए टेक्स्ट फाइल. सिमिलरली राइट लाइंस किसके लिए, कि आपको मल्टीपल लाइंस एक साथ लिखनी है टेक्स्ट फाइल के अंदर. नाउ पिकल मॉड्यूल के अंदर अगर आपको डाटा रीड करना है फॉर दैट वी हैव लोड, अगर डाटा राइट करना है तो फॉर वी हैव डब. सिमिलरली इन सीएसवी अगर हमें डाटा रीड करना है तो फॉर दैट वी हैव रीडर फंक्शन. अगर हमें डाटा राइट करना है तो वी हैव राइटर फंक्शन. इनसाइड दैट राइटर फंक्शन वी हैव टू अनदर मेथड्स व्हिच इज राइट रो एंड राइट रोज. फॉर सिंगल रो वी नीड टू हैव राइट रो एंड फॉर मल्टीपल रोज वी यूज राइट रोज. Okay, I hope you got the idea regarding the reading and writing function present in the different types of file. Now coming back to the question, let's see the option by option and then we'll try to figure out which one is the correct Python statement. Okay, if you see all the four options, each of them for opening the file in a same manner. Okay, since आपको क्या गिवन है, ओनली टेक्स्ट फाइल का नाम गिवन है. सिंस नो एक्सेस मोड इज गिवन हियर तो फाइल क्या हो रही है, बाय डिफॉल्ट रीड मोड में ओपन हो रही है. सो देयर इज अ नो प्रॉब्लम विद द फर्स्ट स्टेटमेंट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट सारे ऑप्शन ही क्या है, सही है. क्यों, क्योंकि वी आर ओपनिंग फाइल notes.txt इन द रीड मोड. नाउ इन द फर्स्ट ऑप्शन इट इज यूजिंग लोड मेथड व्हिच इज नॉट पॉसिबल. ओके, बिकॉज टेक्स्ट फाइल के अंदर क्या है हमारे पास, रीड लाइन एंड रीड लाइन्स. तो लोड फंक्शन किसके लिए यूज होता है, आपका बाइनरी फाइल्स के लिए. सिमिलरली डंप किसके लिए यूज होता है, आपका बाइनरी फाइल्स में डाटा राइट करने के लिए. Hence ऑप्शन ए और बी क्या हो गए आपके, इनकरेक्ट. This one is the correct one because we want to read the 10 bytes of data, or here you can say 10 characters of the text file. This one is incorrect because it is trying to write data into the text file. Okay, so for this question option number C is the correct. Okay, then let's see the next one. So in this particular question, four statements have been given to you and it has been asked which one is the incorrect regarding the opening a text file to write content into it. तो हमें क्या करना है, we need to open a text file and then write content into it. So for that which one is the incorrect. Now in order to answer this one, first of all we need to be aware of the access mode in file handling. So I'll go quickly on the access mode. We have three major modes, R, A and W. R is for reading, A is for appending the data, W is for writing. Okay, so read mode है that allows only reading mode, and A and W both allows your writing operation. Then we have plus which you can be used with the in conjunction with R, A and W. Plus mode लगाने से क्या होता है, it will allow you both the operation, reading as well as writing. Now coming back to our question, let's see the option by option. This one is the W mode, that means it allows us the write into the content, text into file. Then append mode also allows us to write the data into the text file. Then we do not have any such thing as A mode. As you recall, हमारा Python क्या है, case sensitive है. That means जो small a है, it does not equals to capital A. That's why this one is the incorrect statement. Okay, W plus also gives you the writing operations in the text file. Okay, so for this question, option number C is the correct one. Okay, then let's see the next one. So in this particular question, a text file has been opened. Okay, since no access mode is given, तो default mode क्या हो गया आपका, read mode. Now it has been asked which one is the correct statement to close it. तो in order to close a file, first of all we need to be aware कि जब हम फाइल ओपन करते हैं तो जो फाइल ओपन करते टाइम हमें ऑब्जेक्ट मिला है, दिस इज नोन एज फाइल ऑब्जेक्ट. वही फाइल ऑब्जेक्ट की मदद से क्या कर सकते हो, यू कैन क्लोज द फाइल. एंड सिंटैक्स इज लाइक दिस.
file object dot and the close function. So for this question, option number D is the correct one. Why? Because it is using the file object my file dot close. This is the correct syntax for closing a text file in Python. Okay, then let's see the next one. So in this particular question, it has been asked which option is the correct regarding the correct usage of the tell function in the file handling. So in order to answer this one, first of all, we need to be aware of regarding the tell function. तो syntax क्या है उसका? File object dot tell. अब file object क्या होता है आपका? जब भी आप फाइल आप ओपन करते हो तो जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है दिस इज नोन एज फाइल ऑब्जेक्ट. तो ये होता है आपका फाइल ऑब्जेक्ट. ओके, तो अब टेल फंक्शन क्या काम करता है आपका? इट गिव्स यू द इंटीजर वैल्यू. जो इंटीजर वैल्यू क्या डिटरमाइन करती है, क्या स्पेसिफाई करती है? आपकी करंट पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट और यू कैन से फाइल हैंडलर. यानी एक तरह से जो आपकी फाइल का कर्सर कहां पर है, इट गिव्स बाय द टेल मेथड. ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी द ऑप्शन बाय ऑप्शन. It places the file pointer at a desired offset in a file. This one is incorrect. This is the functionality of seek function. It returns the entire content of file. No, this is also incorrect. It is the functionality of the read function. It returns the byte position of the file position as an integer. This one is the correct one for this question. And it tells about details about the file. This one is also incorrect. So for this case, option number C is the correct one. Okay, then let's see the next one. So in this particular question, four options have been given to you and it has been asked which one of them is incorrect logical operator. Okay, तो अगर मैं लॉजिकल ऑपरेटर की बात करूं पाइथन के अंदर तो वी हैव थ्री लॉजिकल ऑपरेटर. फर्स्ट वन इज एंड, देन और एंड देन नॉट. Okay, so we have only three logical operators in Python. So for this question, option number B is the incorrect one. That means the right answer for this one is in operation, which is your membership operator. Okay, so this is a very simple question. So right answer for this one would be option number B. Okay, then let's see the next one. So in this particular question, a string has been given to you, which is as value hello, and it has been asked which of the following statements give us error. So first of all, let me write down the content H, E, L, L, and O. Let me do the indexing for this one 0, 1, 2, 3 and 4. तो फर्स्ट ऑप्शन से प्रिंट S1 ऑफ 4. तो S1 ऑफ 4 पे क्या प्रिंट हो जाएगा आपका? O प्रिंट हो जाएगा सिंपली. ओके, नाउ इट इज सेइंग S2 इक्वल्स टू S1. अब इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एन एग्जांपल एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर है पूरा डाटा आपका, लेट्स से 0x19 पे एग्जांपल के लिए. तो अब क्या हो रहा होगा? इस मेमोरी एड्रेस को S1 एक्सेस कर रहा होगा. सिमिलरली व्हेन यू यूज S2 इक्वल्स टू S1, इस केस में क्या होगा? S2 भी अब सिमिलर मेथड को यूज कर रहा होगा. यानी दोनों ही डाटा टाइप क्या कर रहे हैं, दोनों ही वेरिएबल क्या कर रहे हैं, सेम वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं. तो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट वन. ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है. नाउ ऑप्शन नंबर सी S1 इक्वल्स टू S1 ऑफ 4, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ व्हाट विल हैपन? S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? S1 ऑफ 4 विच इज O इन दिस केस. ओके, नाउ ऑप्शन नंबर डी क्या है? S1 इक्वल्स टू Y. दिस इज द इनकरेक्ट वन. व्हाई? व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू? यू आर ट्राइंग टू रिप्लेस जो O है आपका, S1 ऑफ 4 क्या है आपका? O. उसकी जगह क्या चाह रहे हो आप? Y चाह रहे हो, विच इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ स्ट्रिंग, बिकॉज स्ट्रिंग इज योर इम्यूटेबल डाटा टाइप. तो स्ट्रिंग क्या है आपकी? इम्यूटेबल डाटा टाइप है. दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू चेंज एनी डाटा ऑफ द स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग के अंदर आप कोई डाटा चेंज नहीं कर सकते. सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन. ओके, देन लेट्स सी द नेक्स्ट वन. So in this particular question, four statements have been given to you and it has been asked out of these given four statements, which one is the incorrect in the context of pickled binary files. यानी कि binary files के respect में कौन सी statement गलत है. So in order to answer this one, first of all, we need to be aware what are the different types of files we have in our curriculum, what are the associated modules with them, and what are the reading and writing functions we have for these particular files. So I want you to take a look at this table and I want you to take a note of it as well. So the first file we have is .txt file, which is a part of the text file. और इसका associated module है आपका IO module. ये मॉड्यूल क्या होता है आपका? पाइथन का बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल होता है. इसको आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती. When coming to the reading functions of the .txt file, we have three major functions. First of all, read, readline and readline. Read function is for to read specific number of bytes from a file. Read line is for one line and read lines is for multiple line. Similarly, when coming to the writing function, we have two major functions, write and write lines.
राइट क्या हो गया बेसिकली टू राइट स्पेसिफिक नंबर ऑफ बाइट्स इन ए फाइल एंड राइट लाइन इज टू राइट स्पेसिफिक नंबर ऑफ लाइन्स इन ए टेक्स्ट फाइल. ओके, now moving on to the second type of file, we have binary file. दूसरा एक्सटेंशन क्या हो सकता है आपका .dat और .bin. In order to use binary file, we need to import pickle module. ध्यान दीजिएगा, IO मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन pickle मॉड्यूल को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा. Now, when it comes to the reading function, we have load in binary and dump for writing. Similarly, for CSV file, which is also a text file, we have a module CSV module which we need to import it. Okay, then for reading we have a reader function and for writing we have a writer function. राइटर फंक्शन क्या करता है, आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, उस ऑब्जेक्ट के हेल्प से आप दो और फंक्शन यूज कर सकते हो विच इज राइट रो एंड राइट रोज. राइट रो फंक्शन किसके लिए हो गया आपका सिंगल रोज को राइट करने के लिए एंड राइट रो इज फॉर मल्टीपल रोज. नाउ कमिंग बैक टू अवर क्वेश्चन, now we will be able to answer this question because based on the content we have received in this video so far, we will be able to answer this one. Okay, let's go one by one. CSV module is used for reading and writing objects in binary file. This is incorrect because CSV module किसके लिए use होता है आपका CSV files के लिए. Now second line is pickle module is used for reading and writing objects in binary file. This one is correct. Load of the pickle module is used to read objects. It is also correct. And dump is for write object. This is also correct. So incorrect one is the option number A. Hence, the right answer for this one is option number A. Okay then, let's see the next one. So in this particular question, four options have been given to you and it has been asked which one is the correct one regarding the significance of the seek method. Okay, so this is a very simple question. It is basically asking functioning of the seek method in Python. Okay, in order to answer this one, first of all you need to be aware कि seek function होता क्या है और क्या उसकी functionality होती है. तो seek function basically काम क्या करता है आपका, it used to position the file object. अब file object क्या है आपका, जब भी आप फाइल को ओपन करते हो तो जो ओपन फंक्शन होता है वो आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज फाइल ऑब्जेक्ट. ओके, तो फ्री फंक्शन क्या काम करता है आपका, जो फाइल ऑब्जेक्ट है यानी कि जो फाइल का पॉइंटर है आपका उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे सेट करने में हेल्प करता है. और फाइल जो आपका सीक फंक्शन को सिंटेक्स क्या है आपका, लाइक दिस, इट हैज टू पैरामीटर्स ऑफसेट एंड रेफरेंस पॉइंट. जैसे आप देख रहे होगे कि इट इज इन स्क्वायर ब्रैकेट, इट मींस इट इज ऑप्शनल इन नेचर. ओके, तो ऑफसेट क्या हो गया आपका कि आप अपने जो पोजीशन है, जो आप अपने जो कर्सर है उसको कितनी पोजीशन मूव करना चाहते हो. ओके, एंड तो भाई ऑफसेट क्या हो गया, जैसे मैंने बताया आपको कि जितने नंबर ऑफ बाइट्स आप से आप अपने फंक्शन को अपने कर्सर को मूव करना चाहते हो. और रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया कि किस पॉइंट से आप उसको मूव कराना चाहते हो. तो अगर मैं बात करूं सीक फंक्शन की तो वी हैव थ्री रेफरेंस पॉइंट. फर्स्ट वन इज 0, सेकंड वन इज 1 एंड अनदर वन इज 2. तो 0, 1 एंड 2. तो 0 का मतलब क्या हो गया, बिगिनिंग ऑफ द फाइल. 1 का मतलब क्या हो गया, करंट पोजीशन ऑफ द फाइल. एंड 2 का मतलब क्या हो गया, एंड ऑफ द फाइल. नाउ आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू हाउ टू डू इट. ओके, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल दिस इज द, जो भी आपका करंट स्क्रीन पे है वो आपकी एक टेक्स्ट फाइल है. ओके, और आपका कर्सर यहां पर है. लेट्स से इट इज एट पोजीशन नंबर 15. ओके, इट मींस कि इससे पहले आपके 15 बाइट्स ऑफ डाटा रीड हो चुके हैं. नाउ यू वांट टू मूव योर कर्सर टू लेट्स से दिस पोजीशन which is let's say 27. Now you have two options to do it. First one is either you can take a reference point from the starting. तो क्या करोगे आप, seek, you need to move to the 27 position and 0. Okay, now another option is you can move it from the starting, जो आपकी current position है, यानी what you want to move, you want to move to 12 bytes क्योंकि 15 आपका ऑलरेडी है और उससे 12 बाइट मूव करोगे तो कितना हो जाएगा, 27. सिमिलरली यू कैन हैव फ्रॉम द नेगेटिव इंडेक्स एज वेल. तो उस केस में क्या होगा, आपको ऑफसेट क्या हो जाएगा आपका, उस केस में ऑफसेट वुड बी नेगेटिव. क्यों, क्योंकि आप क्या करना चाह रहे हो, आप नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट करना चाह रहे हो और यहां पहुंचना चाह रहे हो. लेट्स से अगर ये 1000 है तो 1000 में से 27 माइनस करोगे तो कितना ऑफसेट आ जाएगा आपका, अकॉर्डिंग टू दैट देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ऑफसेट. आई होप यू गॉट द आइडिया कि सीक फंक्शन काम कैसे करता है, क्या डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट है उसके. Now coming back to the question, it is very simple question. Okay, तो significance क्या है seek method का, let's see the option by option. It seeks the absolute path of the file. No. It tells the current byte position of the file pointer. It is also not correct. It is a functioning of tell function. It places the file pointer at the desired object in the file. This one is the correct one. It seeks the entire content of the file. It is also incorrect.
So for this question, option number C is the correct one. Okay then, let's see the next one. So in this particular question, it has been asked, what is the correct expansion of the CSV? तो CSV का correct expansion क्या है आपका? तो it is a very easy question. The answer, right answer would be CSV stands for comma separated values. Okay. So this is a very easy question. Option number A is the correct one for this one. Okay then, let's see the next one. So in this particular question, a statement has been given to you which is states as x equals to f dot read lines. जो क्या कर रहा है आपका एक टेक्स्ट फाइल ऑब्जेक्ट f से रीड करने की हेल्प कोशिश कर रहा है. नाउ यू नीड टू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डाटा टाइप ऑफ x. यानी कि जो x का डाटा आपने जो वेरिएबल रिसीव किया है उसका रिटर्न टाइप क्या होगा आपका. बेसिकली इट इज आस्किंग फॉर रिटर्न टाइप ऑफ रीड लाइंस फंक्शन. Okay, so in order to answer this one, first of all, we need to be aware different type of reading functions we have in a text file. What are the functionalities of them and what are the return types of those functions. Okay, so I want to take a note of this one. चाहे तो आप screenshot भी ले सकते हैं. So basically we have three methods or three functions to read the data from a file. Okay, first one is read function. ये फंक्शन जो भी है आपके इट विल बी यूज विद द हेल्प ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट. अब फाइल ऑब्जेक्ट क्या है आपका. जब भी आप फाइल ओपन करते हो तो जब फाइल आप ओपन करते हो तो जो डाटा ऑब्जेक्ट आप रिटर्न रिटर्न करते हो दैट इज नोन एज फाइल ऑब्जेक्ट. ओके, अगर एफ आपका ऑब्जेक्ट है तो इट विल बी एफ डॉट रीड. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द फंक्शनैलिटीज वी हैव. फर्स्ट वन इज वी हैव रीड फंक्शन. रीड फंक्शन क्या काम करता है. बेसिकली आपका किसी भी टेक्स्ट फाइल से रीड करता है n बाइट्स ऑफ डाटा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n. उसका रिटर्न टाइप क्या है आपका स्ट्रिंग. रीड लाइन फंक्शन क्या काम करता है आपका सिंगल लाइन के अंदर कितने नंबर ऑफ बाइट्स आप रीड करना चाहते हो वो आपको अलाउ करता है. अगर आपने एन की कोई वैल्यू पास नहीं करी तो क्या करेगा कंप्लीट लाइन रीड कर लेगा. ओके, इसका रिटर्न टाइप भी क्या है आपका स्ट्रिंग. नाउ कमिंग बैक टू रीड लाइंस, ये क्या करता है आपका इट अलाउ अस टू रीड ऑल द लाइंस ऑफ द फाइल. तो इस केस में क्या होगा इट विल बी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग. Okay, so now coming back to our question, it is a simple one. Answer is option number B because what we have told you, readlines का function क्या है आपका list of string. तो उसका डाटा टाइप क्या हो गया आपका it will give you list. Okay, hence option number B is the correct one. Okay then, let's see the next one. So in this particular question, four statements have been given to you and it has been asked which one is the incorrect in the context of positional and default parameters in the Python. Okay, so in order to answer this one, first of all, you need to be aware कि what is the parameters in the Python. Okay, अगर मैं Python की बात करूं तो in order to write a user defined function क्या करते हो आप. You write define function name then followed by parenthesis. parenthesis के अंदर क्या आते हैं आपके पैरामीटर्स आते हैं. Let's say A, B, C and D एग्जाम्पल के लिए. Now पोजिशनल पैरामीटर्स क्या होते हैं. जब आप सेम फंक्शन को जब आप कॉल करते हो उसकी केस में आपने वैल्यू दी 1, 2, 3 एंड 4. तो क्या होगा जब फंक्शन कॉल होगा तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मैप 1 से, बी की 2 से, सी की 3 से और डी की 4 से. तो दिस इज योर पोजिशनल पैरामीटर. नाउ व्हाट आर द डिफॉल्ट पैरामीटर्स. तो फॉर एन एग्जांपल व्हाइल डिफाइनिंग ए फंक्शन आपने क्या करा कि जब फंक्शन आपने डिफाइन किया आपने कोई फिक्स वैल्यू ले ली. लेट्स से a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2. इस केस में क्या होगा अगर जब भी आप फंक्शन कॉल करोगे लेट्स से आपने फंक्शन कॉल किया 3, 4 से तो इस केस में क्या होगा और वैल्यू हो जाएगी ओवरराइट. ए की वैल्यू बिकम 3 एंड बी की वैल्यू बिकम्स 4. ठीक है, लेकिन अगर आपने सेम फंक्शन कॉल किया किसी और वैल्यू से लेट्स से 1 से तो इस केस में क्या होगा ए की वैल्यू तो 1 हो जाएगी. लेट्स से 4 थी वैल्यू एग्जांपल के लिए तो ए की वैल्यू तो 4 हो जाएगी लेकिन बी की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 2 ही रहेगी. तो इनसाइड द फंक्शन लेट्स से आपने क्या करा a प्लस बी करा है तो उस केस में आउटपुट क्या जाएगा आपका 4 प्लस 2 विच इज 6. ओके, सो डिफॉल्ट पैरामीटर कब यूज किए जाते हैं आपको जब आप फंक्शन कॉलिंग करते टाइम कोई वैल्यू पास नहीं करना चाहते या यूजर को आप इस तरह से बनाना चाहते हैं फंक्शनैलिटी कि अगर यूजर वैल्यू पास ना भी करे तो भी फंक्शन आपका रन हो जाए. इसका एग्जांपल क्या है आपका रेंज फंक्शन. रेंज फंक्शन कैसे काम करता है आपका स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप. इस केस में क्या होता है आपका स्टार्ट एंड स्टेप क्या होता है आपका ऑप्शनल होता है. यानी कि अगर आप वैल्यू पास नहीं भी करोगे तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहती है इसकी 0 एंड +1. फॉर एन एग्जांपल अगर आपने क्या दिया रेंज ऑफ 9 तो वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी 0 to 8. सिमिलर टू अगर आपने रेंज पास किया होता रेंज 1, 9, 1 तो इस केस में वैल्यू कहां से कहां तक जाती है 1 से लेकर 8 तक. तो डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर्स अगर आपको पोजिशनल पैरामीटर है डिफॉल्ट पैरामीटर है देन यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि क्या वैल्यूज किसको असाइन होगी. ओके,
Now coming back to this question, in order to answer this one, we need to be aware about the one property of the default parameter, and this is the this one. कि जो default parameters होते हैं आपके, they should be the trailing parameters. Trailing parameters का मतलब क्या होता है कि they should be come at the last. आई वॉन्ट टू टेक ए नोट ऑफ दिस थ्री जो लाइंस लिखी हैं आपकी, इसको आप नोट कर लीजिए कि अगर आपका फंक्शन हेडर के अंदर कोई डिफॉल्ट वैल्यू है तो जितने भी पैरामीटर उसके राइट साइड पे होंगे वो सब क्या होने चाहिए, आपके डिफॉल्ट वैल्यूज होनी चाहिए. यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके फंक्शन हेडर के अंदर एक डिफॉल्ट पैरामीटर आ गया तो उसके बाद के जितने भी पैरामीटर्स होंगे दे शुड बी योर डिफॉल्ट पैरामीटर्स ओनली. यानी कि डिफॉल्ट पैरामीटर के बाद कोई पोजिशनल पैरामीटर या कोई नॉर्मल पैरामीटर्स नहीं आ सकता. ओके, नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स ओवर दिस वन. फॉर एग्जांपल, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज योर पोजिशनल पैरामीटर एंड दिस इज योर डिफॉल्ट पैरामीटर. सिंस डिफॉल्ट पैरामीटर्स कम से है तो उसके बाद से कोई भी पैरामीटर क्या हो सकता है, आपका नॉर्मल पैरामीटर्स नहीं हो सकता. दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज दोनों ही पैरामीटर्स क्या हैं, आपके डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं. दिस वन इज इनकरेक्ट. व्हाई? बिकॉज आपका जो फर्स्ट पैरामीटर है वही क्या है, आपका डिफॉल्ट पैरामीटर है. तो बाकी के जो पैरामीटर्स हैं दे शुड बी योर नॉर्मल पैरामीटर, डिफॉल्ट पैरामीटर्स ओनली. इट कैन नॉट बी योर नॉर्मल पैरामीटर्स. सिमिलरली फॉर दिस वन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. व्हाई? बिकॉज फर्स्ट पैरामीटर क्या है, आपका नॉर्मल, एंड बाकी रेस्ट ऑफ टू पैरामीटर्स आर डिफॉल्ट पैरामीटर्स. So now coming back to our question, let's see option by option and try to figure out which one is the correct one. Now the first option is default parameter must occur to the right of the positional parameter. This one is the correct one. Okay. ये क्या है आपकी correct one है, तो right answer would be the this is the correct one. Okay. Now the second statement is positional parameter must occur to the right of the default parameter. This is incorrect. ये दोनों ही statements क्या है, आपस में contradict कर रही हैं, A and B. ठीक है. Positional parameter must occur to the left of default parameter. This is also correct. All parameters to the right of a default parameter must also have a default value. So the right answer for this one would be option number B. Okay, then let's see the next one. So in this particular question, a function header has been given to you and it has been asked which of the following function calls will give us an error. So in order to answer this one, let's see option by option and try to figure out which will give us the right output and which will give us the incorrect output. Okay, so when you call function calc 15 with values 15 and 25, तो इस केस में क्या होगा, वैल्यू ऑफ 15 विल बी मैप टू x. अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 15, एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी फ्रॉम 20 टू 25. दिस इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ डिफॉल्ट पैरामीटर्स इन पाइथन. तो इस केस में क्या होगा, आपका जो y की वैल्यू क्या है, डिफॉल्ट क्या है आपकी 20, बट सिंस यू पास द वैल्यू ऑफ 25 इन कैलसी फंक्शन, तो उस केस में क्या होगा, बेस्ड ऑन द पोजीशन x की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 एंड y की वैल्यू हो जाएगी 25. इन दिस केस इट इज फंक्शन हैज बीन कॉल्ड विद द कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स. मतलब क्या हुआ कि आपने वैल्यू क्या करी, रादर देन बीइंग पोजीशन आपने क्या करा, स्पेसिफाइड कर दी कि बेस्ड ऑन द जो कीवर्ड है आपके, यानी जो वेरिएबल्स के नाम से ही आपने उसको स्पेसिफाई कर दिया. इस केस में क्या होगा, x की वैल्यू विल 15 एंड y की वैल्यू विल बी 25. दिस इज आल्सो ए करेक्ट फंक्शन कॉल. Now in this case what you have done, you have called y equals to 25. अब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की हेल्प से क्या होगा कि x की वैल्यू तो कोई डिफाइन नहीं हुई, लेकिन y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी फ्रॉम 20 टू 25. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपने x की वैल्यू पास नहीं करी. उस केस में क्या होगा, इट विल गिव यू एरर. एरर क्या रहेगा कि आपका कि जो फंक्शन आपने डिफाइन किया है कैलसी, इट वाज सपोज टू रिसीव टू पैरामीटर्स बट इट रिसीव्ड ओनली वन पैरामीटर. ओके. नाउ इन द केस ऑफ ऑप्शन नंबर डी, व्हाट विल हैपन, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैप हो जाएगी 15 से, एंड y की वैल्यू क्या है, बाय डिफॉल्ट 20 है, तो फंक्शन विल रन. तो इस केस में एरर नहीं आएगा. आई होप यू गॉट द आइडिया. So for this question, option number C is the correct one because this function call will give you the error. Okay, then let's see the next one. So in this particular question, four statements have been given to you and it has been asked which one is the incorrect in the context of scope of variables. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दो स्कोप होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप. तो लोकल स्कोप का क्या रहता है आपका, जनरली फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल आपने डिफाइन किया है वो बन गया आपका लोकल स्कोप, और जो वेरिएबल आपने फंक्शन के बाहर डिफाइन किया है वो बन गया आपका ग्लोबल स्कोप. इन जनरल क्या होता है, आप ग्लोबल स्कोप की वैल्यूज को लोकल फंक्शंस के अंदर यूज कर सकते हैं, लेकिन जो वेरिएबल्स आपने लोकल फंक्शन के अंदर डिफाइन करे हैं उन वैल्यूज को आप बाहर यूज नहीं कर सकते. नाउ लेट्स सी ऑप्शन बाय ऑप्शन एंड देन वी विल ट्राई टू फिगर आउट व्हिच वन इज द करेक्ट एंड व्हिच वन इज इनकरेक्ट.
So first thing first, global keyword is used to change of a global variable in a local scope. This one is the correct one. Why? Because अगर आपके किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल्स विद द सेम फंक्शनलिटी डिफाइंड है, फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया v इक्वल्स टू 15, लेट्स से मैंने एक वेरिएबल फंक्शन ले लिया abc, ठीक है, उसके अंदर भी मैंने एक वेरिएबल ले लिया v इक्वल्स टू 20, और क्या करा है मैंने फंक्शन कॉल कर लिया, फंक्शन कॉल करने के बाद क्या करा मैंने उसको प्रिंट करा दी वैल्यू, वैल्यू क्या है मेरी अगी b है। अगर मैंने क्या कर दिया यहाँ पे ग्लोबल v यूज कर लिया, तो इस केस में क्या होगा, जो वैल्यू है v इक्वल्स टू 50 इट विल बी चेंज टू v इक्वल्स टू 20 थ्रू आउट द प्रोग्राम, क्योंकि अब क्या होगा जो v यहाँ प्रिंट होगा प्रिंटेड एज 20। अगर यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड नहीं यूज करते तो यहाँ पे वैल्यू क्या आती है आपकी 50। ओके, नाउ वी डू नॉट हैव लोकल कीवर्ड एंड सच एज, तो इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट वन का क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया, एंड वी डू नॉट हैव एनी लोकल कीवर्ड, तो ये क्या हो गई आपकी इनकरेक्ट। नाउ लेट्स सी टू अदर ऑप्शंस एज वेल। ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड विदाउट यूजिंग द ग्लोबल, ये भी करेक्ट है आपका। इट मींस यू आर ट्राइंग टू से कि जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं आपके उनको आप फंक्शन के अंदर भी यूटिलाइज कर सकते हो। Local variables cannot be used outside its scope. This is also correct. That means, for an example, it is trying to say, let's say मेरा एक variable है v equals to 20, एक function है again x y z, let's say इट इज ट्राइंग टू से लास्ट टू स्टेटमेंट्स कि अगर मैं v यहाँ यूज करना चाह रहा हूँ इस फंक्शन के अंदर, तो इट विल अलाउ, यस इट विल अलाउ, वैल्यू विल बी प्रिंटेड 20। सिमिलरली लेट्स से मैंने क्या करा, एक वेरिएबल ले लिया इक्वल्स 20 और आई एम ट्राइंग टू यूज दिस वन आउटसाइड द फंक्शन, तो इट विल गिव मी एरर, क्या एरर देगा कि यू कैन नॉट यूज दिस वेरिएबल। ठीक है, सो फॉर दिस वन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो इस केस के लिए क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Why? Because this is the only statement which is incorrect in the context of scope of variable. Okay then, let's see the next one. So in this particular question, four options have been given to you and it has been asked which one of them has the default character for the new line parameter of a CSV file. तो जब भी आप फाइल ओपन करते हो राइट फंक्शन पाइथन के अंदर, तो उसके अंदर जो न्यू लाइन पैरामीटर होता है उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती है। तो इन द केस ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सीएसवी फाइल के अंदर न्यू लाइन पैरामीटर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है आपकी स्लैश एन। ओके, नाउ न्यू लाइन पैरामीटर आता कहां पर है आपका, जब वेन एवर यू ओपन ए फाइल इन द सीएसवी, तो आप फंक्शन यूज करते हो, कौन फाइल का नाम क्या है आपकी, ठीक है, किस मोड में आप ओपन करना चाहते हो, आर ए डब्ल्यू में एग्जांपल के लिए, और देन यू अलाउ न्यू लाइन पैरामीटर। ठीक है, तो न्यू लाइन पैरामीटर कहाँ आता है आपका, ओपन फंक्शन के अंदर यूटिलाइज होता है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ओके देन लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको एक पाइथन की स्टेटमेंट गिवन है और आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द करेक्ट आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। ओके, सो इन ऑर्डर टू आंसर दिस वन you need to be aware regarding the precedence and associativity of operators in Python. So I want you to take a look at this table. चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सो दैट जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें इस टाइप के, तो आपके पास डाटा हैंडी रहे कि कौन सी ऑपरेटर पहले रिजॉल्व होगा। सो नाउ कमिंग बैक टू अवर क्वेश्चन, तो बेस्ड ऑन द प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी है, प्रायोरिटी यानी किसकी है, इसकी, दिस इज योर एक्सपोनेंट ऑपरेटर, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, इसकी, यानी कि इस एक्सप्रेशन के अंदर सबसे पहले कौन सा रिजॉल्व होगा, 3 की पावर 2 which is equal to 9. Okay, 5 plus 9 divided by 2. Now in between plus and division, division की precedence ज्यादा है, so that's why आपका division will be resolved first. तो value now 5 plus 9 by 2 will become 4.5. Now we have only one operator left, which is now answer would be 9.5. So the answer for this one will be option number C, 9.5. Okay then, let's see the next one. So in this particular question, it has been asked out of the given four option, which one is the not a tuple in Python. So let's take a look at options one by one and we will try to figure out which one is the not a tuple in Python. So first one is the tuple in a Python, because tuple क्या होता है आपका combination of elements, यानी it consists elements and each and every element is followed by a comma. Okay, now this is also a correct one. This is also correct one. This is the incorrect one. This is not a tuple in Python. ये क्या है आपका, एक string है। क्यों, क्योंकि सिंगल एलिमेंट टपल के लिए क्या होना चाहिए था आपका, इट शुड बी फॉलोड बाय ए कॉमा। दिस इज योर ए सिंगल एलिमेंट टपल। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ओके देन लेट्स सी द नेक्स्ट वन। So in this particular question, four options have been given to you and it has been asked which one of them is not a module or function of the random module in Python. तो अगर मैं बात करूं random module की, तो we have only three functions. First one is random itself, second one is random integer,
and third one is random range. Okay, so we have only these three functions in the random module in Python. So this one is the not a module or a function of the random module in Python. So this is a very easy question. So for this question, option number A is the correct one. Okay, then let's see the next one. So in this particular question, four statements have been given to you and it has been asked which one of them is a not a valid string operation. So in order to answer this one, first of all, we need to be aware regarding the operations in string. Okay, so we have basically four major operations on string. Okay, let's take a look at them one by one. Let's say we have string 1 A, its content is A, B, C, D. एग्जाम्पल के लिए लेट्स से अनदर कंटेंट वी हैव B, इसके अंदर क्या है आपका लेट्स से C, D, E. नाउ कंकैटिनेशन क्या करता है आपको इट अलाउज टू यू मर्ज टू स्ट्रिंग. तो व्हेन इफ आई डू A प्लस B इट विल बी हैपनिंग A प्लस C D E. यानी जो भी स्ट्रिंग आपने बाद में लिखी है उसका क्या होगा कंटेंट विल बी अपेंडेड टू द प्रीवियस स्ट्रिंग. नाउ ध्यान देने की बात क्या है दोनों ही ओरिजिनल स्ट्रिंग्स में कोई भी डाटा चेंज नहीं होगा. ये कंकैटिनेशन क्या करेगा आपका न्यू स्ट्रिंग फॉर्म करेगा. ठीक है तो कंकैटिनेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्ट्रिंग इट विल नॉट चेंज द डाटा इन द ओरिजिनल स्ट्रिंग्स. ओके नाउ कमिंग बैक टू द रिपीटिशन केस में क्या होता है आपका तो कंकैटिनेशन में क्या था आपका दोनों डाटा टाइप शुड बी ऑफ सेम डाटा टाइप यानी स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग होनी चाहिए आपकी दूसरा डाटा टाइप भी. नाउ इन केस ऑफ रिपीटिशन इट इज यूज्ड यूजिंग स्टार. तो उस केस में क्या है आपका वन डाटा टाइप शुड बी स्ट्रिंग एंड अनदर शुड बी इंटीजर. ठीक है तो एक आपका क्या होना चाहिए इंटीजर दूसरा क्या होना चाहिए आपका स्ट्रिंग. नाउ लेट्स से दिस वन a इंटू टू तो क्या आउटपुट आएगा आपका इसका इसका आउटपुट वुड बी ए बी सी डी एंड ए बी सी डी. सिमिलरली वी कैन हैव थ्री इंटू एग्जाम्पल के लिए लेट्स से दिस वन थ्री इंटू बी यानी थ्री अगर क्या करना चाह रहे हो बी को रिपीट करना चाह रहे हो थ्री टाइम्स तो आपका क्या आउटपुट आएगा सी डी ई एंड सी डी. सिमिलर टू द कंकैटिनेशन रिपीटिशन क्या करता है आपका ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं करता रिपीटिशन आल्सो क्रिएट्स ए न्यू स्ट्रिंग. देन वी हैव ए मेंबरशिप ऑपरेटर्स व्हिच इज इन एंड नॉट इन व्हिच अलाउ अस टू गिव आउटपुट इन द बूलियन डाटा टाइप. तो इट विल अलाउ अस टू फाइंड कि कोई कैरेक्टर या कुछ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हमारे पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है. तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आई हैव राइटन दिस वन ए बी इन ए. तो इसका मतलब क्या पूछ रहा हूं मैं कि जो ए बी है वो ए के अंदर है या नहीं है. तो इट विल गिव अस वैल्यू ट्रू बिकॉज ए बी क्या है आपको एबीसीडी में है ना. सिमिलरली लेट्स से इफ आई आस्क ई एफ इन बी तो इस केस में हम आस्किंग कि बी के अंदर ई एफ है क्या इट विल गिव अस फॉल्स बिकॉज ई एफ हमारे स्ट्रिंग के अंदर नहीं है. देन वी हैव स्लाइसिंग. स्लाइसिंग क्या करता है बेसिकली आपको मेजर जो कंप्लीट स्ट्रिंग है उसका कुछ पोर्शन को आप पूरी स्ट्रिंग में से कुछ पोर्शन पिक करना चाहते हो देन यू विल एबल टू डू विद द हेल्प ऑफ स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप यानी स्लाइसिंग की हेल्प से आप वो काम कर सकते हो. सिमिलर टू रिपीटिशन एंड कंकैटिनेशन स्लाइसिंग आल्सो गिव्स यू द न्यू स्ट्रिंग. नाउ जो भी ऑपरेशन हमने बात करें स्ट्रिंग के सेम ऑपरेशन एप्लीकेबल ऑन टपल एज वेल एज लिस्ट. तो आपको अगर ये चार ऑपरेशन समझ में आ गए तो लिस्ट के लिए भी सेम है और टपल के लिए भी सेम है. नाउ कमिंग बैक टू अवर क्वेश्चन लेट्स सी वन बाय वन. तो दिस इज डूइंग कंकैटिनेशन. तो कंकैटिनेशन के लिए क्या होना चाहिए दोनों ही डाटा टाइप क्या होने चाहिए सिमिलर होने चाहिए. तो इस केस में फर्स्ट डाटा टाइप क्या है आपका स्ट्रिंग दूसरा भी क्या है स्ट्रिंग. तो दिस इज योर वैलिड ऑपरेशन. रिपीटिशन केस में क्या होना चाहिए एक स्ट्रिंग दूसरा इंटीजर दिस इज ऑल्सो करेक्ट. दिस इज वन इज इनकरेक्ट बिकॉज रिपीटिशन केस में क्या होना चाहिए एक स्ट्रिंग तो है आपका लेकिन दूसरा इंटीजर नहीं है. ये क्या है आपका फ्लोट वैल्यू विच इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ स्ट्रिंग. ओके सिमिलर दिस इज वन इज कंकैटिनेशन. इस केस में क्या है आपका ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है. सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. ओके देन लेट्स सी द नेक्स्ट वन. So in this particular question, three Python statements have been given to you and it has been asked what will be the output of this particular Python code. So in order to solve this one, let us do first line numbering of this particular code. It is line number 1, 2 and then 3. Now in the line number 1, आपको एक tuple given है जिसके अंदर कुछ elements हैं. Let's do the indexing of this tuple. So we have 0, 1, 2, 3 and 4. That means we have 5 elements in this particular tuple. If you see this tuple carefully, at the index number 2, that means the third element of the tuple is a list. Okay, this is your list. इसकी मैं sub indexing कर लेता हूँ 0, 1 and 2. Now in the line number 2 of the this Python code, what you trying to do? You are trying to update
इंडेक्स नंबर 2 पे जो एलिमेंट है उसका जो फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको आप अपडेट करना चाह रहे हो 100 से, यानी कि व्हाट यू ट्राइंग टू डू, यू आर ट्राइंग टू अपडेट 40 विद 100। ना अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि जो टपल है आपका वो क्या होता है, इम्यूटेबल। सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड सो फार कि टपल क्या है आपका, इम्यूटेबल है। हाउएवर वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू देयर इज एन एक्सेप्शन फॉर दिस वन। एक्सेप्शन क्या है आपका, कि अगर टपल के अंदर कोई म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है तो उस म्यूटेबल ऑब्जेक्ट के अंदर के एलिमेंट्स को आप चेंज कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्शन क्या है आपका, अगर किसी इम्यूटेबल डाटा टाइप के अंदर म्यूटेबल टाइप है तो उस म्यूटेबल डाटा टाइप के ऑब्जेक्ट्स को आप चेंज कर सकते हो। ओके, सो फॉर दिस पर्टिकुलर कोड इफ आई सी दिस वन, इफ यू ट्राई टू अपडेट 40 with 100, this operation is allowed. Hence, what will be the output then? Output would be 10, 20 एंड लिस्ट के अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी 30, 40 की जगह क्या हो जाएगी 100। नाउ द रिमेनिंग वैल्यूज विल रिमेन सेम। ओके, नाउ दिस विल बी द पर्टिकुलर आउटपुट। आई होप यू गॉट द आइडिया कि जो टपल क्या है आपका इम्यूटेबल है, हाउएवर देयर इज एन एक्सेप्शन, कि अगर कोई इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट के अंदर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट रहेगा तो उस म्यूटेबल ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हो। विच इज नॉट अलाउड, कि अगर आप इस लिस्ट की जगह पूरे सेकंड एलिमेंट की जगह कुछ वैल्यू अपडेट करना चाहते हैं, लेट्स से 5, इफ यू ट्राई टू डू दिस, लेट्स से t of 2 equals to 5, this is not allowed because in this case what you are trying to do, you are trying to change the element of the tuple। अभी तक आप क्या कर रहे थे, इससे पिछले केस में आप टपल के अंदर का जो लिस्ट का एलिमेंट था उसको चेंज कर रहे थे, विच इज अलाउड। बट अगर आप टपल के एलिमेंट को चेंज करना चाहोगे, विच इज नॉट अलाउड। So in order to cross check this one, you can also run this code on the IDE. You will see कि आउटपुट क्या है, आपका आएगा जो हमने अभी डिड्यूस किया है। Okay, so coming back to this question, the output would be option number B, which is 40 will be replaced by 100. Okay, then let's see the next one. So in this particular question, three Python statements have been given to you, and it has been asked what will be the output of this particular Python code. So in order to solve this one, first let's do the line numbering. Then we will see what is each and every line is doing. Okay, so in the line number one, first it is doing, आपको एक list given है जिसके अंदर कुछ elements हैं 10, 20, 30, 40 and 50. In the second part, what is doing? It is trying to do concatenation first, and then it is concatenation के बाद का जो result आएगा उसको क्या कर रहे हो, फिर से L में assign करना चाह रहे हो। Now देयर इज अ बेसिक रूल फॉर कंकैटिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल कंकैटिनेशन जो होता है आपका वो कहाँ का अप्लाई होता है, कंकैटिनेशन बेसिकली आपका जो सीक्वेंस डाटा टाइप्स हैं आपके उनमें अप्लाई होता है। सीक्वेंस डाटा टाइप कौन कौन से हो गए आपके, स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया या टपल हो गया आपका। ये तीनों ही डाटा टाइप्स के अंदर क्या है आपका कंकैटिनेशन अलाउड होता है। नाउ देयर इज अ बेसिक रूल रिगार्डिंग द कंकैटिनेशन। व्हाट इज दिस, द रूल क्या है आपका कंकैटिनेशन का, कि दोनों डाटा टाइप आपके सिमिलर होने चाहिए। यानी कि अगर कंकैटिनेशन से पहले अगर आपका लिस्ट है तो सेकंड एलिमेंट भी क्या होना चाहिए आपका, लिस्ट होना चाहिए। अगर स्ट्रिंग है तो सेकंड एलिमेंट भी क्या होना चाहिए आपका, स्ट्रिंग। सिमिलरली अगर फर्स्ट एलिमेंट टपल है आपका तो सेकंड एलिमेंट भी टपल होना चाहिए। रिमेंबर दिस वन, कंकैटिनेशन का बेसिक रूल क्या कहता है आपका, कि दोनों डाटा टाइप क्या होने चाहिए आपके, सिमिलर होने चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू अवर क्वेश्चन, इफ यू सी द लाइन नंबर 2, इसके अंदर क्या है आपका, एल तो क्या हो गया, एक लिस्ट हो गई, लेकिन 5 क्या है आपका, एक इंटीजर वैल्यू है। दैट मीन्स कि जो भी आप कंकैटिनेट करना चाह रहे हो दोनों डाटा टाइप क्या है आपके, सिमिलर नहीं है, तो इट विल रिजल्ट टू एरर। तो ये क्या देगा आपको, एरर देगा। एरर क्या देगा, कि यू कैन नॉट कंकैटिनेट लिस्ट विद एन इंटीजर नंबर, इट शुड बी अ लिस्ट। ओके, तो इफ यू रन दिस वन ऑन आईडी, यू विल सी कि आपका आउटपुट क्या आ रहा है, इट विल गिव यू एरर। एरर क्या है आपका, कि यू कैन ओनली कंकैटिनेट लिस्ट विद लिस्ट। ठीक है, आप इंटीजर को कंकैटिनेट नहीं कर सकते। नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, विच इज एरर। Okay, then let's see the next one. So in this particular question, two Python statements have been given to you, and it has been asked what will be the output of this particular code. So in order to answer this one, we need to understand few points regarding the dictionaries in Python.
तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो आपके डिक्शनरी का डाटा टाइप है, इट इज एनक्लोज्ड अंडर कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, और ईच एलिमेंट क्या कंसिस्ट करता है आपका की वैल्यू पेयर को, यानी कि की विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड वैल्यू वुड बी ऑन द राइट हैंड साइड। अदर देन दिस वन, आपके जो सीक्वेंस डाटा टाइप की तरह, जो लिस्ट स्ट्रिंग या टपल की तरह, इसमें इंटीजर इंडेक्सिंग नहीं होती। आपकी जो डिक्शनरी है इसके अंदर इंटीजर इंडेक्सिंग नहीं होती। हाउएवर, टू इन ऑर्डर टू एक्सेस द एलिमेंट इट रिलाइज ऑन द कीज, यानी कि आप कीज की हेल्प से ईच एंड एवरी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं डिक्शनरी के। ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा, चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि जो डिक्शनरी है पाइथन के अंदर वो इंटीजर इंडेक्सिंग फॉलो नहीं करती। इट रिलाइज ऑन द कीज टू एक्सेस द वैल्यू। ओके, नाउ कमिंग बैक टू अवर क्वेश्चन, लेट्स सी द लाइन नंबर वन। फर्स्ट लाइन नंबर क्या है आपकी, एक डिक्शनरी गिवन है जिसके अंदर अमित वुड बी द की, 90 वुड बी द वैल्यू। सिमिलरली रेशमा वुड बी द की एंड 96 would be the value, so and so on so forth. Now in the line number 2 it is asking print John in D. Remember we have told you in order to access element we need to rely on keys. That means when we are using membership operator we will be able to see keys only. Okay, नाउ फॉर दिस वन, जॉन इन डी, इट इज आस्किंग कि जो जॉन है हमारा डिक्शनरी के अंदर है या नहीं है। इफ यू सी, तो जॉन आपकी क्या है, वन ऑफ द कीज है, तो इट विल गिव अस वैल्यू ट्रू। तो फर्स्ट केस में आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, जो प्रिंट स्टेटमेंट की फर्स्ट लाइन है आपकी, इट विल गिव अस वैल्यू ट्रू। ओके, देन इट इज फॉलोड सेपरेटेड बाय हैश, तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, हैश। नाउ इट इज आस्किंग 90 इन डी, यानी कि जो आपके डी के अंदर 90 एज ए की अवेलेबल है क्या, आंसर वुड बी फॉल्स। 90 एज ए वैल्यू तो अवेलेबल है पर एज ए की अवेलेबल नहीं है। ध्यान रखिएगा, वी रिलाइज ऑन कीज, वी डू नॉट रिलाइज ऑन वैल्यू। इन डिक्शनरी वी रिलाइज ओनली ऑन कीज। ओके, सो फॉर दिस वन आउटपुट वुड बी फॉल्स। तो ध्यान दीजिएगा, आपके फर्स्ट केस में क्या था, जॉन इन डी, इट वुड बी लीड्स टू ट्रू, बट इस केस में क्या आएगा, वैल्यू फॉल्स। तो नाउ आउटपुट वुड बी ट्रू हैश फॉल्स। अगर आप ध्यान दीजिएगा देंगे ऑप्शंस के अंदर, तो थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, गलती से मिसप्रिंट हो गया है एफ। हाउएवर दिस इज द करेक्ट वन ओनली, तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ओके देन, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आपको एक टपल गिवन है विच इज नेम्ड एज टी, उसकी कुछ वैल्यूज गिवन है 10, 20 एंड 30। Then it is has been asked कि particular student Nitish wants to insert an element 40 after these three elements so that tuple may contain this। अब क्या करना है आपको, जो existing tuple है उसमें 40 ऐड करना चाहता है वो। ठीक है, अब आपको बताना है कि out of the given statements which one allow us to accomplish the given task। So in order to answer this one, first of all, let's try to understand operations that we allowed on tuples, string and list। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा, बेसिकली वी हैव फोर मेजर ऑपरेशन विच इज अलाउड, प्लस, रिपीटिशन, मेंबरशिप एंड स्लाइसिंग। ध्यान दीजिएगा, कंकैटिनेशन, रिपीटिशन एंड स्लाइसिंग, तीनों ही ऑपरेशन क्या करते हैं, आपके एग्जिस्टिंग लिस्ट, टपल या स्ट्रिंग में चेंज नहीं करते। क्या करते हैं, आपकी एक नई लिस्ट या नई स्ट्रिंग या नया टपल क्रिएट करते हैं। I am repeating myself. It does not change the existing list, string or tuple. It creates a new list, string or tuple. Okay. Now based on this one, let's coming back to the question again. आपको क्या given है, 10, 20, 30 है। आपको क्या करना है, इसमें 40 ऐड करना है। तो in order to do that, what we can do, we can add a single element list, single element tuple, which will give us value 10, 20, 30 and 40। नाउ रिमेंबर दिस वन, लेट्स से फॉर एग्जांपल जो ये एलिमेंट्स हैं आपके, ये किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है, लेट्स से 0x89 पे। नाउ वंस यू डू द कंकैटिनेशन, इन एलिमेंट्स की मेमोरी लोकेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इट विल बिकम लेट्स से फॉर एग्जांपल 0x100। However, if you want to assign it to again to a tuple, what you can do, you can do it like this: t equals to t plus 40 followed by comma। ओके, नाउ व्हाट विल यू डू, जो मेमोरी लोकेशन 0x89 पे था उसमें आपने क्या करा, 40 ऐड करके एक नई टपल बना दी, उसको क्या कर दिया आपने, एक नई मेमोरी लोकेशन असाइन कर दी। वेरिएबल का नाम हो सकता है सिमिलर हो, लेकिन मेमोरी लोकेशन क्या होंगी दोनों की, डिफरेंट। ओके, इफ यू रन दिस वन ऑन द आईडी, सी, एक बार इधर ध्यान दीजिएगा आप,
अगर आप इसको आईडी पे रन करोगे तो यू विल सी कि विद द हेल्प ऑफ आईडी वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इसकी मेमोरी लोकेशन क्या है आपकी 45A24। फिर क्या करा आपने, कंकैटिनेशन किया फॉर सिंगल एलिमेंट टपल, तो आपकी वैल्यू तो चेंज हो गई टी की, लेकिन इसकी मेमोरी लोकेशन भी ऑल्सो चेंज हो गई। यानी कि मेमोरी लोकेशन जो पुरानी थी उसमें आपका डाटा चेंज नहीं हुआ। डाटा चेंज किस में हुआ है आपका, एक डाटा एग्जिस्टिंग टपल के साथ आप क्या करा, डाटा चेंज करने के बाद आपने एक नई टपल क्रिएट कर दी। Okay, guys. Then for this particular question, option number C is the correct one. Okay, then let's see the next one. So in this particular question, a text file which is named as notes.txt has been given to you. उसका कुछ कंटेंट गिवन है एंड along with कंटेंट आपको एक पाइथन का कोड गिवन है और आपसे पूछा गया है कि इस पर्टिकुलर कोड का क्या आउटपुट आएगा। तो in order to get the output, let's first do the line numbering of this code so that we will be able to figure out what each and every line is doing. Okay. Now the first thing is at line number 1 it is saying you are opening a file notes.txt. If you recall, जो ओपन फंक्शन होता है उसके अंदर आपके दो पैरामीटर्स होते हैं मेजरली। फर्स्ट वन इज फाइल नेम, अनदर वन इज एक्सेस मोड। सिंस इसके अंदर कोई एक्सेस मोड पास नहीं किया गया तो डिफॉल्ट मोड क्या रहता है आपका, रीड मोड। ओके, ध्यान दीजिएगा, अगर वाइल ओपनिंग ए फाइल अगर कोई एक्सेस मोड प्रोवाइड नहीं किया गया तो इन दैट केस इट इज द डिफॉल्ट मोड क्या है आपका, रीड मोड। Now in line number 2, it has been given f.seek 29. If you see this statement, तो क्या है आपका f.seek 29? Similar to the open function, seek function के अंदर भी आपके दो पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट वन इज ऑफसेट, सेकंड वन इज रेफरेंस पॉइंट। इसके अंदर भी डिपेंडिंग ऑन द रेफरेंस पॉइंट वी विल मूव आवर ऑफसेट। जनरली रेफरेंस पॉइंट की क्या वैल्यूज होती हैं आपकी, 0, 1 एंड 2। सिंस कोई भी वैल्यू पास नहीं है तो जीरो इट मींस, तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0। 0 मींस बिगिनिंग ऑफ द फाइल। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, व्हेन वी आर ओपनिंग ए फाइल इन द रीड मोड तो इनिशियली क्या होता है आपका कर्सर कहां होता है, बिगिनिंग ऑफ द फाइल पे। But since in the line number 2 you are using f.seek29, that means it will shift the position of the cursor to the 29th byte. Okay. After that, at line number 3, what are you doing? You are trying to read the content from the file. So let's say this is the 29. We don't know which is the 29. We need to count it for. But जो भी क्या होगा, once your जो आपका कर्सर है वो 29th बाइट पोजीशन पर है, आप क्या कर रहे हो, उसके बाद आप f डॉट रीड की हेल्प से यू आर रीडिंग जो जितना भी कंटेंट बचा है आपका टेक्स्ट फाइल का। यानी कि 29th बाइट के बाद जितना भी कंटेंट आपका बचा है उस टेक्स्ट फाइल में, वो कंटेंट कहां आ जाएगा आपका, एस के अंदर। ठीक है, नाउ व्हाट यू नीड टू डू एट लाइन नंबर 4, यू नीड टू प्रिंट एस इन द लाइन नंबर 4। So now we'll see the options and then we'll try to figure out which is the correct and which is the not correct. The first one is the way to get started is to, so this is the incorrect. Why it is incorrect? Because it is starting from the byte number first. हमारा कर्सर कहां पे था, बाइट नंबर 29 पे। बिकॉज ऑफ द लाइन नंबर 2 हमारा कर्सर कहां पहुंच गया, लाइन नंबर 29 पे। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव द फर्स्ट स्टार्टिंग बाइट्स। Quiet talking and begin doing, it seems to be the correct option. Why? Because okay 29 bytes, it seems like कि 29 bytes आपकी यहां से start होगी। Otherwise what you can do, you can count and you can figure out the exact answer as well. This is not possible. Why? Because first few bytes cannot be in the part of the string and it is reversing the string, it is also not a possible case. तो आई होप यू गॉट द आइडिया कि हाउ टू फिगर आउट ए क्वेश्चन, कि अगर कोई फंक्शन आ रहा है तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डू इट लाइन बाय लाइन सो दैट यू विल बी एबल टू इवेल्युएट कि भाई कोई क्वेश्चन कैसे काम कर रहा है। ओके, सो फॉर दिस वन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ओके देन लेट्स सी द नेक्स्ट वन। So in this particular question, two statements have been given to you and it has been asked what will be the output of these two particular statements. Okay, so let's see them one by one. So first line में क्या है आपका, s equals to good morning, that means एक string define की करिए, इसका content क्या है आपका good followed by space then morning. Then in the next statement क्या है आपका, print के अंदर you have two functionalities, capitalize as well as title and then ended by, जो एंड पैरामीटर है उसका वैल्यू क्या है आपकी, एक्सक्लेमेटरी साइन। नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस वन यू नीड टू बी अवेयर व्हाट इज कैपिटलाइज फंक्शन क्या काम करता है और टाइटल फंक्शन क्या काम करता है। अगर मैं बात करूं कैपिटलाइज फंक्शन की, तो कैपिटलाइज फंक्शन की रिक्वायर फंक्शनैलिटी क्या है, ये क्या करेगा आपका, जो भी स्ट्रिंग आपने पास ऑन करी है वो स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर को क्या कर देगा, कैपिटल केस कर देगा, बाकी के रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे आपके स्मॉल केस। तो क्या है,
फर्स्ट जो कैरेक्टर है आपका स्ट्रिंग का, वो क्या हो जाएगा आपका कैपिटल केस। ठीक है, ओनली फर्स्ट कैरेक्टर। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर यही स्ट्रिंग है गुड मॉर्निंग, तो कैपिटलाइज करने पे क्या होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी जी फॉलोड बाय ओडी फॉलोड बाय स्पेस देन मॉर्निंग। इफ यू सी, जो कैपिटल जी है बाकी सारा क्या है आपका स्मॉल केस है। ओके, ऑन द अदर हैंड इन द केस ऑफ टाइटल, टाइटल के केस में क्या होगा आपका कि जो फर्स्ट कैरेक्टर है ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड, ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड। तो फॉर एन एग्जांपल अगर मेरी स्ट्रिंग के अंदर 10 वर्ड है, तो उस केस में क्या होगा 10 के 10 वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो जाएगा कैपिटलाइज हो जाएगा, अदरवाइज बाकी के कैरेक्टर्स क्या रहेंगे आपके स्मॉल केस रहेंगे। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है आपका, कैपिटलाइज क्या करता है पूरी स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर को करता है, और टाइटल क्या करता है स्ट्रिंग के अंदर जितने भी वर्ड्स अवेलेबल हैं उन वर्ड्स के हर एक कैरेक्टर को फर्स्ट कैरेक्टर क्या करेगा कैपिटलाइज करेगा। तो फॉर एन एग्जांपल अगर एस डॉट टाइटल है आपका, तो उस सिनारियो में क्या वैल्यू आएगी आपकी कैपिटल जी फॉलोड बाय स्मॉल केस देन कैपिटल ओ सॉरी एम। ओके, तो ध्यान दीजिएगा इस केस में क्या हो रहा है हर एक वर्ड कैपिटलाइज हो रहा है। ठीक है, नाउ फॉलोड बाय एंड पैरामीटर, तो एंड पैरामीटर क्या करेगा आपका जो प्रिंट स्टेटमेंट के एंड में आपको क्या लगा देगा एक एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देगा। नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस बाय ऑप्शन। So first one is incorrect, second one is also incorrect. Why it is incorrect? Because capitalize function क्या काम करता है आपका फर्स्ट कैरेक्टर को ही कैपिटलाइज करेगा, बाकी क्यों कैपिटलाइज नहीं करेगा। दिस वन इज, इसके अंदर क्या है ये इशू है। ओके, एंड पैरामीटर क्या करता है आपका एंड ऑफ द प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, तो फॉर दिस वन दिस विल बी द राइट ऑप्शन। अगर आपको फंक्शनलिटी नहीं भी पता कैपिटलाइज और टाइटल, तो इस क्वेश्चन केस में यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ एंड पैरामीटर ओनली यू कैन आल्सो रिजॉल्व कि एक ही केस में क्या हो रहा है आपका जो सही यूज यूटिलाइजेशन हो रहा है एंड पैरामीटर का। तो हेंस इन दिस केस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन फॉर दिस केस। ओके देन लेट्स सी द नेक्स्ट वन। So in this particular question, few Python statements have been given to you and it has been asked what will be the output of this particular code. So in order to solve this one, let's do the line numbering first and then we'll try to resolve line by line what will each and every line is doing. तो फर्स्ट लाइन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट लाइन में क्या है आपका एक एम्प्टी लिस्ट आपने क्रिएट करी हुई है। नाउ इन द सेकंड लाइन फॉर आई इन रेंज 4, इसका मतलब क्या है कि आई की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी 0 से लेकर 3 तक, बिकॉज रेंज फंक्शन कैसे काम करता है आपका स्टार्ट से लेकर स्टॉप माइनस 1 तक। सिंस स्टार्ट वैल्यू गिवन नहीं है इस केस में, तो वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0 से स्टार्ट होके 4 माइनस 1 तक। तो मैंने क्या करा आई की वैल्यू लिस्ट डाउन कर ली। नाउ आपको क्या करना है एम्प्टी लिस्ट के अंदर, इनिशियली क्या है आपकी लिस्ट एम्प्टी है, इस लिस्ट के अंदर क्या करना है आपको अपेंड फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ आई। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं 2 इंटू आई प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो फर्स्ट केस में जब वैल्यू 0 है तो इट विल बिकम 1, इस केस में वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस 1 विच इज 3, इस केस में क्या हो जाएगी 2 इंटू 2 विच इज 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। सिमिलरली इस केस में क्या हो जाएगी 2 इंटू 3 प्लस 1 विच इज 7। तो हमारी लिस्ट के जो वैल्यूज है वो क्या क्या आते जा रही हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। अब इन्हीं वैल्यूज क्या करना है आपको लिस्ट के अंदर ऐड करते जाना है। तो फर्स्ट केस में क्या ऐड होगा आपका 1, सेकंड केस में क्या ऐड हो जाएगा आपका 1 के बाद 3। अपेंड फंक्शन कैसे काम करता है आपका जो भी एलिमेंट आप अपेंड करना चाह रहे हो वो लास्ट में ऐड हो जाएगा। सिमिलरली इस केस में क्या होगा 1 3 5 ऐड हो जाएगा, और इस केस में क्या होगा 1 3 5 एंड 7। ठीक है, तो ये हो गया आपका लूप खत्म। तो लाइन नंबर 1 में क्या था आपका एम्प्टी लिस्ट, सेकंड लाइन जो नहीं आपका जो फॉर लूप है उसमें क्या था आपकी रेंज कहां से कहां तक जा रही है 0 से लेकर 3 तक। फिर क्या कर रहे हो आप हर इटरेशन में क्या काम कर रहे हो आप लिस्ट के अंदर वैल्यू अपेंड कर रहे हो। क्या वैल्यू अपेंड कर रहे हो 2 इंटू आई प्लस 1। नाउ इन लाइन नंबर 1 इट इज डूइंग स्लाइसिंग। सिंस स्लाइसिंग का ऑपरेशन कैसे रहता है आपका स्टार्ट फॉलोड बाय स्टॉप फॉलोड बाय स्टेप। सिंस आपने क्या करा है स्टेप की वैल्यू क्या दे रखी है -1 और स्टार्ट और स्टॉप की वैल्यू कोई वैल्यू पास नहीं कर रखी, तो तीनों इस केस में क्या होगा इट विल गिव अस द रिवर्सल ऑफ द लिस्ट। तो क्या कर देगा आपको जो लिस्ट आपकी आप इनपुट आई है उसको क्या करोगे आप रिवर्स कर दोगे। तो इस जो लिस्ट आई है आपकी वो क्या है एल की वैल्यू क्या है, पर रिवर्सल की वजह से वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 7 5 3 1। Okay, so this will be your output. Now if you wish to run on it id you can run it, you will get the same output जो हमने अभी डिड्यूस किया है।
Now coming back to the question again, so output would be 7531. Hence, in this case, option number A is the correct one for this particular code. Okay then, let's see the next one. So in this particular question, few Python statements have been given to you and it has been asked what will be the output of these Python statements. So in order to solve this one, let's do the first line numbering and then we'll try to figure out what is each and every line is doing. तो फर्स्ट लाइन में क्या है, आपका एक एम्प्टी डिक्शनरी है जिसकी वैल्यू क्या कर रखी है आपने, इनिशियली कोई भी वैल्यू पास आउट नहीं है. नाउ इन द सेकंड लाइन व्हाट इज हैपनिंग, आपको क्या दे रखी है, एक टपल दे रखी है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं. लेट मी डू द इंडेक्सिंग फॉर दिस वन. तो 0 1 2 and followed by 3. Okay, so we have four elements in this tuple: Jishan, Nishan, Gurmeet and Lisa. Now in the line number 3 आपका एक for loop start हो रहा है जिसकी वैल्यू क्या हो रही है, I in range 1, 5. तो for your convenience what I'll do, I will write the value which will going to apply for I. तो 1 2 3 and followed by 4. ओके, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 से 1, 5 है तो 1 से लेकर 5 - 1 तक, यानी कि 1 2 3 4. नाउ हर इटरेशन में क्या करना है आपको, यू नीड टू इवेल्युएट टी ऑफ आई माइनस 1. देन क्या करना है आपको, एक डिक्शनरी के अंदर उसको असाइन करना है. तो इनिशियली डिक्शनरी क्या है आपकी, एम्प्टी है. नाउ विल सी इटरेशन बाय इटरेशन कि क्या आउटपुट आएगा. व्हेन आई की वैल्यू इज 1 तो टी ऑफ आई माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका, टी ऑफ 0. तो टी ऑफ 0 का मतलब क्या हो गया, जिशान. आप क्या कर रहे हो, आप लाइन नंबर 4 में डी ऑफ 1 की वैल्यू क्या दे रहे हो आप, जीशान. ठीक है, तो डी ऑफ 1 इसका मतलब क्या है, यू आर असाइनिंग एन एलिमेंट टू द डिक्शनरी. तो उसका मतलब क्या आएगा, आपकी डिक्शनरी बन जाएगी ऐसे 1:2, वैल्यू वुड बी जीशान. तो 1 will be your key and Jishan will be your its value. ओके, आई होप यू गॉट द आइडिया कैसे वैल्यू इनसाइड हो रही है इसके अंदर. D1 ऑफ जिशान, जो ये लाइन है आपकी, ये क्या काम फंक्शनलिटी प्रोवाइड करा रही है आपकी, ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करा रही है. 1 बिकम द की एंड जिशान विल बिकम इट्स वैल्यू. नाउ फॉर I इक्वल्स टू 2, वैल्यू विल बिकम T ऑफ 1. T ऑफ 1 पे वैल्यू क्या है आपकी, निशांत. अब इस केस में क्या होगा, D ऑफ 2 विल बी निशांत. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस केस, जिशान तो ऑलरेडी है इसके अंदर. तो व्हाट विल हैपन, जिशान के बाद क्या होगा, नेक्स्ट उसमें इटरेशन में 2 विल बी एडेड एज अ की एंड इसकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी, निशांत. ओके, आई होप यू गॉट द आइडिया कि कैसे फंक्शनलिटी परफॉर्म हो रही है डिक्शनरी के अंदर. सिमिलरली इस केस में क्या होगा, व्हेन वैल्यू इज 3 तो वैल्यू क्या हो जाएगी, टी की पावर टी ऑफ 2. तब क्या हो जाएगा इस केस में, डी ऑफ 3 विल बी इक्वल्स टू गुरमीत. और क्या होगा, 1 पे जीशान, 2 पे निशांत और 3 पे क्या आ जाएगा आपका, गुरमीत. ओके, सिमिलरली व्हेन I इक्वल्स टू 4 तो इस वैल्यू क्या हो जाएगी, टी ऑफ 3. टी ऑफ 3 क्या है आपका, लीसा. सिमिलरली 1 पे निशांत, 2 पे जीशान, 3 पे गुरमीत एंड 4 पे क्या आ जाएगा आपका, लीसा. तो फाइनल लिस्ट डिक्शनरी क्या बनेगी आपकी, दिस वन. इस केस में क्या होगा आपका, नाउ एट द लाइन नंबर 5 व्हाट इज आस्किंग, प्रिंट ऑफ डी. तो जब प्रिंट आप डी करोगे तो क्या आएगी आपकी, एक डिक्शनरी आएगी, इसके अंदर आपकी 4 एलिमेंट्स होंगे. फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट वैल्यू की वुड बी 1 2 3 4 एंड रेस्पेक्टिवली उनकी वैल्यूज क्या होंगी, जिशान, निशान, गुरमीत और लीसा. इफ यू विश यू कैन रन दिस वन ऑन द आईडी एज वेल, यू विल सी द सेम आउटपुट. देखिए ध्यान दीजिएगा कि आपको पेपर में आईडी नहीं मिलेगा. तो यू नीड टू लर्न कि कैसे इवेल्युएट करना है कोड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. Okay, so now coming back to this one, it would be the option number D will be the correct one. Why? Because it is the only option which is giving us dictionary and in the required format. So for this one, option number D is the correct one. Okay, then let's see the next one. So in this particular question, few Python statements have been given to you and it has been asked what will be the output of this particular code. So in order to solve this one, let's first do the line numbering and then we'll try to figure out what each and every line is doing. Now in the line number 1, if you see, we have two variables on the left hand side, L1, L2. इसके अंदर L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10, 15, 20, 25 और L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, empty list. नाउ लाइन नंबर 2 में क्या है आपका, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ L1. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा आपको, लेंथ ऑफ L1 कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं आपके, ऑब्वियसली 4 एलिमेंट. तो 0 1 2 3. नाउ फॉर योर कन्वीनियंस लेट मी डू द लाइन नंबरिंग.
सो दैट आपकी जो इंडेक्सिंग की वैल्यू वी विल बी एबल टू सॉल्व। रेंज क्या हो गई आपकी 4। तो 4 का मतलब क्या हो गया आपका 0 से लेकर 1 2 एंड 3। तो वी विल हैव 4 इटरेशन इन दिस लूप फॉर वैल्यू आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 2 एंड 3। नाउ वी नीड टू सी व्हाट ईच एंड एवरी इटरेशन में हमारे क्या काम होना है। तो क्या करना है आपको इंसर्ट करना है L2 के अंदर एट इंडेक्स आई और वैल्यू क्या इंडेक्स करनी है आपकी L1 डॉट पॉप। तो आपको क्या करना है हर इटरेशन में ये देखना है कि L1 की वैल्यू क्या है और L2 की वैल्यू क्या है। ठीक है। तो इनिशियली L1 की वैल्यू क्या थी आपकी 10 15 20 25। नाउ इस केस में क्या करोगे आप इंडेक्स नंबर 0 पे L1 डॉट पॉप इंसर्ट करोगे। तो L1 डॉट पॉप का मतलब क्या हो गया आपकी लास्ट वैल्यू। तो लास्ट वैल्यू क्या है आपकी इस केस में 25। पॉप करने के बाद वैल्यू क्या बचेगी आपकी 10 15 20। सिंस यू आर यूजिंग इंडेक्सिंग तो इस केस में क्या होगा इट विल गिव वैल्यू एट लाइन नंबर इंडेक्स नंबर 0। तो इंडेक्स नंबर 0 पे वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 25। तो एक इटरेशन में क्या काम हो रहा है कि आपकी L1 की लास्ट वैल्यू निकाल के उसको आप L2 में इंसर्ट कर रहे हो एट द रेस्पेक्टिव पोजीशन। नाउ इस केस में क्या होगा L1 डॉट पॉप। L1 डॉट पॉप का मतलब क्या हो गया आपकी वैल्यू 20 विल बी पॉप्ड। अगर पॉप फंक्शन के अंदर कोई इंडेक्स पास नहीं किया तो क्या कर रहा है ऑटोमेटिकली इट विल टेक लास्ट वैल्यू। ठीक है। नाउ व्हाट विल यू डू इंडेक्स नंबर 1 पे क्या करोगे उस वैल्यू को इंसर्ट कर दोगे। इट विल बी 25 एंड 20। सिमिलरली इटरेशन नंबर इंडेक्स नंबर 2 पे क्या होगा वैल्यू 15 विल बी पॉप्ड। अब क्या होगा 25 20 एंड 15। सिमिलरली इस केस में क्या हो जाएगा लिस्ट विल बिकम एम्प्टी और इस केस में क्या हो जाएगा 25 20 15 एंड 10। तो इवेंचुअली कर क्या रहा है ये काम ये बेसिकली क्या काम कर रहा है लिस्ट वन के डाटा को पॉप करके L2 में इंसर्ट कर रहा है। ओके। बेसिकली क्या कर रहे हो आप रिवर्सल ऑफ लिस्ट कर रहे हो बट रादर देन डूइंग इन द सेम लिस्ट आप क्या कर रहे हो उसके लिए एक नई लिस्ट फॉर्म कर रहे हो। नाउ कमिंग बैक टू लाइन नंबर 4। लाइन नंबर 4 में क्या है यू नीड टू प्रिंट L1 फॉलोड बाय L2 एंड सेपरेटेड बाय एंड। तो L1 की वैल्यू क्या है आपकी empty list then separated by and operator। L2 की वैल्यू क्या है आपकी 25 20 15 and 10। okay so if you run this one on the IDE you will see we are getting the same output। okay so for this question right answer would be the option number A। okay then let's see the next one। so in this particular question you need to tell which module is used for serialization and deserialization? So the right answer for this one would be the pickle module. But I want you to stick to this video for next 2-3 minutes so that you will have an idea what is serialization and deserialization in Python। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पिकल मॉड्यूल यूज होता है serialization deserialization के लिए। नाउ अगर इफ यू रिकॉल आप डंप फंक्शन कैसे यूज करते हो डाटा ऑब्जेक्ट जो डाटा आपको डंप करना है बाइनरी फाइल के अंदर और उस बाइनरी फाइल का फाइल हैंडलर ये फंक्शनलिटी आप यूज करते हो। और इस फंक्शन को यूज करने के लिए क्या करते हो आप पिकल मॉड्यूल यूज करते हो। ठीक है। अब इस जब आप फंक्शनल लिख रहे हो ये वाला तो बेसिकली बैक एंड पे काम क्या हो रहा है जो भी डाटा ऑब्जेक्ट है आपका चाहे लिस्ट हो स्ट्रिंग हो या टपल हो वो क्या कन्वर्ट हो रहा है आपका स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हो आप सीरियलाइजेशन कहते हो। यानी कि किसी भी डाटा और या ऑब्जेक्ट को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में। तो ये इसी को क्या कहते हो आप सीरियलाइजेशन कहते हो। तो जैसे कि आप इफ यू सी इन दिस लाइन चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो सीरियलाइजेशन और पिकलिंग दोनों ही क्या है आपके सेम काम है। ये प्रोसेस क्या है प्रोसेस है एक किस चीज का प्रोसेस है आपका जो भी डाटा या ऑब्जेक्ट है उसको ट्रांसफॉर्म करने का किसमें स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में। ठीक है। फिर क्या करते हैं आपको अगर ये जो बाइट ऑफ स्ट्रीम्स है इसको क्या यूटिलाइज कर सकते हो आप चाहो तो अपनी डिस्क के अंदर स्टोर कर सकते हो चाहे तो डाटाबेस पे चाहे तो आप इसको आगे ट्रांसफर भी कर सकते हो। सिमिलरली डिसीरियलाइजेशन क्या हो गया आपका रिवर्स प्रोसेस ऑफ दिस वन जहां क्या होगा आपका बाइट स्ट्रीम कहां यूज होगा कन्वर्ट किया जाएगा वापस पाइथन ऑब्जेक्ट में। तो जब आप लोड फंक्शनैलिटी यूज करते हो तो सिनेरियो में क्या होता है आपका डीसीरियलाइजेशन हैपेंस होता है। तो सीरियलाइजेशन के केस में क्या होगा आप डंप फंक्शन यूटिलाइज करोगे और डीसीरियलाइजेशन के लिए यानी कि अनपिकनिकलिंग के लिए क्या करोगे आप लोड फंक्शन यूज करोगे। सो एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी इसका आंसर क्या है आपका पिकल मॉड्यूल। ओके देन लेट्स सी द नेक्स्ट वन। So in this particular question, you need to tell which function in CSV module is used for reading the content from the CSV file।
तो आपको बताना है कि CSV फाइल से डाटा रीड करने के लिए कौन कौन सी फंक्शनलिटी वी हैव इन दिस पाइथन मॉड्यूल। ओके, सो इन ऑर्डर टू आंसर दिस वन यू नीड टू बी अवेयर कि कौन कौन सी फंक्शनलिटीज हैं रीडिंग एंड राइटिंग के लिए फॉर डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स। ठीक है, I want you to take a screenshot of this one. I'm going specifically for the CSV file. तो CSV फाइल के अंदर क्या करना पड़ता है आपको? CSV मॉड्यूल यूज करना पड़ता है. For reading we have only one functionality, reader. But for writing we have a function which is writer function. But writer function की help से what you can do? You can use to utilize function write row and write rows as well. तो आपके फंक्शन एक ही है राइटर, पर उस फंक्शन की हेल्प से यू कैन यूटिलाइज टू अदर फंक्शन राइटर, राइट रो एंड राइट रो. बट while on reading side हमारे पास खाली एक ही फंक्शन है which is reader. Now coming back to our question, we do not have any read row function in Python. We do not have read rows as well. We have reader function in CSV module and load function किस चीज के लिए है आपका? Binary file के लिए. Hence for this one option number C is the correct one. Okay then let's see the next one. So in this particular question, you have been given a Python code and it has been asked what will be the output of this particular code. So in order to answer this one, first let's do the line numbering. Then we will try to figure out what will each and every line is doing. So whenever you get a question on user defined function, the right approach to do is to first of all draw a flow of execution. तो क्या कीजिएगा, पहले आप flow of execution determine कीजिएगा, then only you will be able to determine कि हर line क्या काम कर रही है. Now in the line number one s equals to welcome will be एक string given है आपको s equals to welcome. तो आपका जो Python का इंटरप्रेटर का फ्लो होगा वो पहले क्या एक्सिक्यूट करेगा आपका लाइन नंबर वन. नाउ इट विल गो टू लाइन नंबर टू एंड सी कि ये क्या है, फंक्शन डेफिनेशन है, तो क्या करेगा उसको स्किप कर देगा. नाउ इट विल गो टू डायरेक्टली टू लाइन नंबर फाइव. लाइन नंबर फाइव पे क्या होगा, इट विल कॉल द फंक्शन. फंक्शन का नाम क्या है आपका, चेंज विद द वैल्यू s. s की वैल्यू क्या है आपकी, वेलकम. नाउ it will go to line number 2. While line number 2, because after line number 5 क्या हुआ है आपका, फंक्शन कॉल हुआ है. फंक्शन कॉल हुआ है तो अब क्या होगा, t की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, मैप टू s which is वेलकम. s की वैल्यू क्या है आपकी, वेलकम. ठीक है. नाउ इट विल गो टू लाइन नंबर 3. लाइन नंबर 3 पे क्या करा आपने, वैल्यू को चेंज कर दिया. वैल्यू क्या हो गई आपकी, t की अब हेलो हो गई. पहले क्या थी, वेलकम, अब क्या हो गई, हेलो. ठीक है. वैल्यू चेंज होने का मतलब क्या है, आपके एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में चेंज नहीं हुआ. फॉर एन एग्जांपल, अगर वेलकम मेरा टी, अगर वैल्यू मेरी 0x89 पर है, तो लेट्स से एग्जांपल के लिए दिस वन वैल्यू विल बिकम 0x95 एग्जांपल के लिए. तो इस सिनेरियो में क्या हुआ है, आपका वैल्यू चेंज नहीं हुई है, 0x89 पे अब भी वेलकम ही होगा. ठीक है. नाउ क्या करा आपने, जो वेरिएबल था उसकी रेफरेंस पोजीशन चेंज कर दी. पहले रेफर कर रहा था वो 0x89 को, नाउ इट इज रेफरिंग टू 0x95. ओके. Now at line number 4, what are you doing? You are printing t followed by and operator and. तो क्या प्रिंट होगा आपका, hello followed by @sign. Now since functionality is finished, now it will go to back again line number 5. जहां से फंक्शन कॉल हुआ था वहीं से फंक्शन रिटर्न होगा. Since we are not doing anything on line number 5, it will go to line number 6. तो line number 6 पे क्या है आपका, print of s. अब s की वैल्यू क्या है आपकी, s की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई, तो इट विल रिमेन वेलकम. तो क्या होगा, अब हेलो के बाद क्या प्रिंट हो जाएगा आपका, वेलकम प्रिंट हो जाएगा. हेलो फॉलोड बाय वेलकम. ध्यान दीजिएगा, वैल्यू तब चेंज होती है किसी भी वेरिएबल की until unless वो स्पेसिफाइड किया गया है, वो फंक्शन रिटर्न कर रहा है कुछ वैल्यू. सिंस इन दिस केस कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, उस सिनेरियो में s की वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी. क्यों, क्योंकि s क्या है आपका, ग्लोबल वेरिएबल है. ऑन दी अदर हैंड इस केस में t क्या है आपका, लोकल वेरिएबल है. सिंस t इज अ लोकल वेरिएबल, तो उस वैल्यू में जो भी चेंज हुआ है उसका रिफ्लेक्शन s पे नहीं होगा. अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पे t को ग्लोबल बना देते, ठीक है, तब भी s में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि s इज डिफरेंट और l इज डिफरेंट. हाउएवर अगर यहाँ पे क्या होता, s होता और यहाँ पे आप क्या करते, ग्लोबल ऑफ s, तो इस सिनेरियो में क्या होता, s की वैल्यू चेंज हो जाती. तो तब क्या आता है आपका, यहाँ पे hello. ओके. सो इफ यू रन दिस वन ऑन द id, यू विल सी कि आउटपुट क्या है आपका, hello@welcome. ओके. सो यू विल सी आउटपुट क्या है आपका, hello@welcome. So for this question, option number C is the correct one because it is saying output is hello@welcome. Okay then, let's see the next one. So in this particular question, few statements have been given to you and it has been asked what will be the output of this particular code. So in order to solve this one, let's see the line by line, what is each and every line is doing.
तो फर्स्ट लाइन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट लाइन में क्या कर रहे हो आप, एक मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे हो, इसका नाम क्या है आपका, रैंडम मॉड्यूल। देन सेकंड लाइन में क्या कर रहे हो, एन इन रेंज 2,5,2, दैट मींस वैल्यू फॉर एन विल गो फ्रॉम 2 से लेकर 4 तक फॉर ईच स्टेप वैल्यू 2। तो एन की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो पहले वैल्यू क्या आएगी 2 एंड देन वैल्यू विल बी 4। यानी कि ये जो प्रोग्राम है आपका सिर्फ दो ही इटरेशन रन करेगा। फर्स्ट केस में एन की वैल्यू क्या होगी 2 और सेकंड केस में क्या होगी वैल्यू 4। नाउ इन ईच एंड एवरी इटरेशन इट इज कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ रैंडम रेंज। तो 1 कॉमा एन, ठीक है। तो फर्स्ट केस में वैल्यू क्या हो जाएगी 1 कॉमा 2। तो रैंड डिवीजन की फंक्शन की पॉसिबल वैल्यूज क्या बचेगी आपकी, ओनली 1। क्योंकि रैंड रेंज फंक्शन कैसे काम करता है आपका, सिमिलर टू द रेंज फंक्शन, ठीक है। नाउ इस केस में वैल्यू क्या हो जाएगी 1 कॉमा 4। नाउ वैल्यू वुड पॉसिबल वैल्यू वुड बी 1 2 एंड 3। नाउ यू नीड टू सी इन द जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे कि कौन से ऑप्शन मैच हो रहे हैं। तो फर्स्ट इटरेशन में क्या आउटपुट आएगा 1 ओनली, देन सेकंड इटरेशन में क्या आएगा 1 2 3, ठीक है। तो आउटपुट किस तरह से आएगा आपका 1 हैश 1 हैश, या तो ये आउटपुट होगा आपका। दूसरा आउटपुट पॉसिबल केस क्या बनेगा आपका 1 हैश 2 हैश। तीसरा केस क्या बनेगा 1 हैश 3 हैश। तो आउट ऑफ दीज थ्री ऑप्शन वी कैन हैव ओनली वन आंसर। So if you see the question, we can have only two outputs. So 1 is the only possible case. Since 4 is not possible, so option number D will be the correct one for this case. So for this question, option number D is the correct one. Why? Because first of all, we will have only two values, and in first iteration we can have only value 1, and second iteration we can have value 1, 2 or 3. Okay then, let's see the next one. So in this particular question, a Python code has been given to you and it has been asked what will be the output of this particular code. So in order to solve this one, first of all, we need to do the line numbering and then we will try to figure out what will be the flow of execution of this program. Now based on the flow of execution, we will try to determine what will be the output of this particular code. ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पाइथन इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहले लाइन नंबर 1 पे जाएगा। इट विल सी कि ये क्या है आपका फंक्शन की डेफिनेशन है। इट विल नोट इट डाउन कि इसकी मेमोरी लोकेशन क्या है, बट इसको एक्सिक्यूट नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी फंक्शन तब तक एक्सिक्यूट नहीं होगा जब तक वो फंक्शन कॉल नहीं होगा। नाउ इट विल गो टू लाइन नंबर डायरेक्टली आफ्टर लाइन नंबर 1, इट विल गो टू डायरेक्टली लाइन नंबर 7। लाइन नंबर 7 पे क्या है, एक स्ट्रिंग डिफाइन है आपकी विच इज x इक्वल्स टू पाइथन स्पेस 3.9। नाउ आफ्टर लाइन नंबर 7 इट विल गो टू लाइन नंबर 8। लाइन नंबर 8 पे क्या है आपका फंक्शन कॉलिंग हो रहा है। नाउ व्हेन एवर फंक्शन इज कॉल्ड, जिस मेमोरी लोकेशन पे आपने आपका फंक्शन डेफिनेशन स्टोर था वहां पे क्या होगा, उस मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस किया जाएगा और कर्सर कहां होगा आपका, जो इंटरप्रेटर होगा उस मेमोरी लोकेशन के पास चला जाएगा। नाउ व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड, इट विल गो टू डायरेक्टली लाइन नंबर 1। अब लाइन नंबर 1 पे क्या है, जो वेरिएबल आपने पास किया है लाइन नंबर 8 में, क्या वेरिएबल पास किया है आपने x, इट विल मैप टू द वैल्यू ऑफ s। इसका मतलब क्या है, जो s की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी x के बराबर, यानी कि पाइथन स्पेस 3.9। ओके, नाउ इन लाइन नंबर 2 इट विल से क्या है, एक आपने एक वेरिएबल ले लिया, which is क्या है t, which is क्या है आपका एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। ओके, नाउ इट विल गो टू लाइन नंबर 3। लाइन नंबर 3 पे क्या है आपका एक फॉर लूप है, जिसके अंदर क्या कर रहे हो आप, फॉर i इन s। इसका मतलब क्या है कि i की वैल्यू क्या होगी आपकी ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द s। अगर इफ यू विश आई कैन राइट इट डाउन फॉर यू। तो इसके अंदर i की वैल्यू क्या होगी, पहले कैपिटल P, फिर y, फिर t, फिर h, फिर o, फिर n, फिर स्पेस, फिर 3 एंड देन फिर 3, फिर डॉट एंड देन 9। ओके, नाउ ईच एंड एवरी इटरेशन में क्या होगा, आपका पाइथन का कोड एक्सिक्यूट होगा कि लूप के अंदर क्या क्या फंक्शनलिटी आपको परफॉर्म करनी है। नाउ आफ्टर लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 3 में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इनिशियली p, यानी कि कैपिटल P। नाउ इट विल गो टू लाइन नंबर 4। लाइन नंबर 4 पे क्या है, इट इज चेकिंग जो आई है आपका वो डिजिट है क्या, यानी कंडीशन क्या होगी कि अगर आपका 0 1 2 3 से लेकर 9 तक कोई वैल्यू है तो वो क्या हो गई आपकी डिजिट हो गई। अदरवाइज हर केस में क्या होगी, वैल्यू वुड बी फॉल्स। ठीक है, तो लेट्स से कंडीशन क्या होगी हर केस में, अगर कैपिटल P है तो कंडीशन बिकम फॉल्स, सिमिलरली y में भी फॉल्स, देन t पे भी फॉल्स हो जाएगी, h पे भी फॉल्स, o पे भी फॉल्स, n पे भी फॉल्स, स्पेस के केस में भी फॉल्स। इस केस में क्या हो जाएगी ट्रू, क्योंकि 3 क्या है आपका एक डिजिट है। सिमिलरली इस केस में क्या हो जाएगी आपकी फॉल्स, और इस केस में भी क्या हो जाएगी वैल्यू ट्रू। तो कंडीशन जब ट्रू होगी तब क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है आपको,
आपको क्या करना है, जो एम्प्टी स्ट्रिंग थी उसके अंदर क्या करना है, पहले आपको आई कंकेटिनेट करना है, यानी कि whenever द कंडीशन इज ट्रू, तो कंडीशन ट्रू कहां हो रही है आपकी, जब फर्स्ट केस फर्स्ट इटरेशन क्या है आपका, जब आई की वैल्यू क्या है 3 है, तो इस केस में क्या होगा, टी की वैल्यू क्या है होगी आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग कंकेटिनेट विद 3, तो वैल्यू वुड बी 3। नाउ इस केस में क्या होगा, इट विल वैल्यू ऑफ t विल नॉट बी चेंज, इट विल रिमेन 3 ओनली इन द स्ट्रिंग। देन इस केस में क्या होगा, वैल्यू ऑफ t वुड बी 3 है ऑलरेडी, प्लस कंकेटिनेशन विद 9, तो वैल्यू क्या हो जाएगी अब t की आपकी 3 9 इन स्ट्रिंग। ओके, तो ये प्रोग्राम कैसे रन करेगा आपका, डिपेंडिंग ऑन द इटरेशन कि कितनी नंबर ऑफ इटरेशंस है और हर इटरेशन के अंदर आपको क्या वैल्यू डिटरमाइन करनी है। Now, after line number 4 and 5, it will keep on continuing. How many times? Line number 3, 4, 5 will continue for at least जितने number of values है हमारी Python 3.9 के अंदर। After completion of the loop, what will it will go to line number 6. Line number 6 पे क्या है, जो t की वैल्यू आपने कंप्यूट करी है उस वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न करेगा, तो t की वैल्यू क्या कर देगी आपने, रिटर्न कर दी। आफ्टर लाइन नंबर 6 इट विल गो टू लाइन नंबर 8, क्योंकि जहां से फंक्शन कॉल हुआ था वापस उसी मेमोरी लोकेशन पे वो जाएगा। नाउ इस केस में क्या होगा, लाइन नंबर 8 में y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू विल बी जो रिटर्न वैल्यू ऑफ द फंक्शन, रिटर्न वैल्यू फंक्शन क्या है आपकी 3 9। देन आफ्टर लाइन नंबर 8 लाइन नंबर 9 विल बी एक्सिक्यूटेड, लाइन नंबर 9 पे क्या एक्सिक्यूट होगा आपका, लाइन नंबर 9 क्या है आपकी x कॉमा वाई एंड सेपरेटेड बाय स्टार, यानी कि जो x और y की वैल्यू को आपको प्रिंट कराना है और दोनों ही वैल्यू किससे सेपरेट होनी चाहिए आपकी स्टार से। तो x की वैल्यू के कुछ में कोई भी चेंज हुआ नहीं है, तो x की वैल्यू क्या थी आपकी पाइथन 3 पाइथन स्पेस 3.9 फॉलोड बाय स्टार, स्टार क्यों आया, बिकॉज ऑफ द सेपरेटर पैरामीटर। देन t की आपकी y की वैल्यू क्या है अब 3 9, तो दिस विल बी योर आउटपुट। Now, if you wish, you can run this one on the IDE as well. You will see कि जो आपका आउटपुट है, it will be the similar one जो अभी हमने आप क्या करा डिटरमाइन किया है। Hence for this one, output would be the option number C. Why? Because it is giving the जो भी हमने अभी compute किया है। Hence for this one, option number C is the correct one. Okay then, let's see the next one. So in this particular question, a Python code has been given to you and it has been asked what will be the output of this particular code. So in order to solve this one, let us do the first line numbering. Then after doing the line numbering, then we'll try to figure out किस program का क्या flow of execution होगा. Once we have the flow of execution, it will be an easy task to determine the output of this program. Okay, so first thing first, it will go to line number 1. Line number 1 पे क्या है आपका एक वेरिएबल है v जिसकी वैल्यू क्या डिफाइंड है आपकी 50. ओके, नाउ इट विल गो टू लाइन नंबर 2. लाइन नंबर 2 पे क्या है, इट विल से कि फंक्शन डेफिनेशन है आपकी, सिंस फंक्शन डिफाइन हुआ है कॉल नहीं हुआ, इट विल नॉट एक्सिक्यूट दिस वन। क्या करेगा, इस फंक्शन डेफिनेशन की मेमोरी लोकेशन को नोट डाउन कर लेगा एंड क्या करेगा, बाद में जब भी कॉलिंग होगी इस फंक्शन की उस मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस करके इस फंक्शन डेफिनेशन पे आ जाएगा। नाउ डायरेक्टली फ्रॉम लाइन नंबर 1 इट विल गो टू लाइन नंबर 6। लाइन नंबर 6 पे क्या हुआ है आपका फंक्शन कॉल हुआ है। नाउ फंक्शन कॉल होते क्या होगा, इट विल गो टू लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 2 पे क्या होगा, जो फंक्शन कॉल हुआ है उसमें वैल्यू क्या मैप करी गई है आपकी 20। तो इस केस में जब फंक्शन लाइन नंबर 2 पे डिफाइन होगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी अब आपकी 20, क्योंकि जो फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट आपने पास किया है जब पैरामीटर उस वैल्यू को रिसीव करेगा तो वैल्यू विल बिकम n इक्वल्स टू 20। नाउ लाइन नंबर 3 पे क्या किया गया है, आपका एक ग्लोबल वैल्यू बनाई गई है v को, यानी कि जो v था आपका इस फंक्शन के अंदर आप यूज कर रहे थे इसको, अब जो भी वैल्यू आप अपडेट करोगे वो थ्रू आउट द प्रोग्राम वैल्यू अपडेटेड रहेगी। नाउ इट विल गो टू लाइन नंबर 4। लाइन नंबर 4 पे क्या कर रहे हो आप, वैल्यूज को स्वैप कर रहे हो, यानी v की वैल्यू विल बी स्वैप्ड विद n एंड n की वैल्यू विल स्वैप्ड विद v। तो v की वैल्यू क्या है आपकी इनिशियली 50 और n की वैल्यू क्या है आपकी 20। तो आफ्टर लाइन नंबर 4 वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, n की वैल्यू विल बिकम 50 एंड v की वैल्यू विल बिकम 20। व्हाई, बिकॉज वी आर डूइंग द स्वैपिंग ऑपरेशन ऑन लाइन नंबर 4। आफ्टर लाइन नंबर 4 इट विल गो टू लाइन नंबर 5। अब लाइन नंबर 5 के अंदर हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेटर विच इज यूज्ड टू सेपरेट टू वैल्यूज। देन क्या है आपका एंड पैरामीटर है, यानी जो प्रिंट स्टेटमेंट के बाद हमारा क्या वैल्यू आएगी। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले v की वैल्यू प्रिंट होगी, तो v की वैल्यू क्या है आपकी 20। नाउ सेपरेटेड बाय हैश। नाउ फिर n की वैल्यू प्रिंट होगी, n की वैल्यू क्या है आपकी 50। नाउ एंडेड बाय एट द रेट। वाई एट द रेट, बिकॉज आपका एंड पैरामीटर क्या है एट द रेट। नाउ इट विल गो टू आफ्टर लाइन नंबर 5 इट विल गो टू लाइन नंबर 6। वाई, बिकॉज जहां से फंक्शन कॉल हुआ था वहीं से रिटर्न वापस होगा। आफ्टर लाइन नंबर 6 इट विल गो टू लाइन नंबर 7।
लाइन नंबर 7 पे क्या है आपका, अगेन यू आर ट्राइंग टू प्रिंट v। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके फंक्शन के अंदर क्या है, v की वैल्यू का क्या करा आपने, ग्लोबल डिफाइन कर दिया। ग्लोबल डिफाइन करने से क्या होगा कि जो वैल्यू यहाँ पे चेंज हुई है फंक्शन के अंदर, वो वैल्यू बाहर भी सेम एग्जिबिट करेगा। नाउ तो वैल्यू ऑफ v विल बिकम 20 हेयर ओनली। तो आउटपुट क्या आएगा आपका, 20 हैश 50 एट द रेट 20। इफ यू विश यू कैन रन दिस वन ऑन आईडी, यू विल सी कि जो आउटपुट है आपका वो सिमिलर आउटपुट आएगा जो अभी हमने डिटरमाइन किया है। सो फॉर दिस वन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, जो हमने अभी डिटरमाइन किया है। ओके देन लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन a python code has been given to you and it has been asked what will be the output of this particular code. Now as usual, in order to solve this one, first of all we do the line numbering, then we'll try to figure out what each and every line is doing. तो फर्स्ट लाइन क्या है आपकी, L1 इक्वल्स टू एक लिस्ट है आपके, इसके अंदर कुछ वैल्यूज गिवन है। देन सेकंड लाइन में क्या है, L2 इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट। नाउ थर्ड लाइन में क्या है, फॉर I इन L1, दैट मींस वी आर ट्रैवर्सिंग द लिस्ट। जहां I क्या एक्ट करेगा एज एन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द L1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल आई डू, I की वैल्यू ले लेता हूं मैं, पहले क्या होगी 10, फिर क्या होगी 20, फिर 30, then again 20 and then again 10. Okay, now based on this value we will try to determine कि L2 के अंदर क्या वैल्यू आएगी। Okay, now we need to see in line number 4, line number 4 में क्या चेक कर रहा है कि अगर I हमारा L2 के अंदर नहीं है, तो बेसिकली व्हाट इज प्रोग्रामिंग डूइंग कि आप क्या कर रहे हो, लिस्ट वन की L1 की हर एक वैल्यू को चेक कर रहे हो और ये चेक कर रहे हो कि वो L2 के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या कर रहे हो आप, उसके अंदर उसको ऐड कर रहे हो। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब I की वैल्यू 10 होगी तो इनिशियली क्या है आपकी एम्प्टी, एम्प्टी है तो क्या है, कोई वैल्यू 10 इसके अंदर नहीं है, तो इसके अंदर क्या होगा 10 विल बी अपेंडेड। नाउ सेम फॉर द वैल्यू 20, तो 20 केस में क्या होगा 20 विल बी एडेड, सिमिलरली 30 विल बी एडेड। नाउ व्हेन इट सी कि I की वैल्यू क्या है वो आपकी 20, तो 20 क्या है आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट ही करता है L2 के अंदर, तो इस केस में कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी फॉल्स। नाउ सिमिलरली फॉर द 10 वैल्यू, कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी फॉल्स। नाउ एट लाइन अब क्या हो गया आपका लूप इटरेशन खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि I की सारी वैल्यूज एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। नाउ लाइन नंबर 6 में क्या है, आपको दोनों वैल्यू प्रिंट करानी है L1 और L2 की, सेपरेटेड बाय एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो सेपरेटेड क्या है आपका एंड, तो L1 की वैल्यू तो सिमिलर है ही आपकी 10, 20, 30, then again 20, then 10, then separated by and then L2 की वैल्यू क्या है आपकी 10, 20 and 30. So this will be your output. So if you wish, you can run this one on the ID, you will get the same output. Hence for this question, option number D is the correct one, जो अभी हमने determine किया है। Okay then, let's see the next one. So in this particular question, a Python code has been given to you and it has been asked what will be the output of this particular code. So in order to solve this one, first let's do the line numbering. After line numbering, what we'll do, we will try to determine the flow of execution of this program. Now based on the flow of execution, we will try to determine what will be the output of this particular code. So first thing first, it will go to line number 1. line number 1 पे क्या है आपका फंक्शन की डेफिनेशन है। सिंस फंक्शन अभी कॉल नहीं हुआ तो ये फंक्शन क्या होगा, एक्सिक्यूट नहीं होगा। तो डायरेक्टली इंटरप्रेटर कहां पे जाएगा आपका, लाइन नंबर 9 पे। लाइन नंबर 9 पे क्या है आपकी एल डिफाइन है, इसकी वैल्यू क्या है आपकी 2, 6, 9 और 10, यानी आपकी एक लिस्ट डिफाइन है। then it will go to line number 10. line number 10 पे क्या है आपका एक फंक्शन कॉल हुआ है with no argument. now it will go to line number 1, क्योंकि वही फंक्शन आपका डिफाइन हुआ है। now फंक्शन जब आर्ग्यूमेंट नहीं है तो कोई पैरामीटर भी रिसीव नहीं किया उन्होंने। लाइन नंबर 2 पे क्या है, फॉर I इन रेंज लेंथ ऑफ L, तो L की लेंथ कितनी है आपकी, इसकी मैं इंडेक्सिंग कर देता हूं 0, 1, 2, 3। तो I की लेंथ कितनी है आपकी 0, 1, 2, 3। तो लेंथ ऑफ L कितनी है आपकी 4। ओके, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से लेकर 3 तक, बिकॉज ऑफ द रेंज फंक्शन। नाउ हर इटरेशन में यू नीड टू डिटरमाइन कि L ऑफ I की वैल्यू क्या है और उसके अकॉर्डिंग L ऑफ I की वैल्यू क्या कर रहे हो आप, चेंज कर रहे हो। नाउ L ऑफ I की वैल्यू क्या है आपकी हर केस में, 0 केस में 2, फिर 6, फिर 9 एंड देन 10। नाउ लाइन नंबर 3 पे क्या चेक कर रहे हो आप कि जो L ऑफ I है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर 2 से डिविजिबल है तो कंडीशन क्या हो रही है आपकी फर्स्ट केस में ट्रू। क्या करना है फिर आपको L ऑफ I को अपडेट करना है L ऑफ I इंटू 2, यानी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। नाउ लाइन नंबर 5 पे क्या है आपका
एल ऑफ आई डिविजिबल बाई 3, तो क्या आपका एल ऑफ आई, यानी अब एल ऑफ आई कितना है आपका 4, तो एल ऑफ आई 4 क्या है आपका डिविजिबल है 3 से, नहीं, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या एग्जीक्यूट होगा आपका, एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, तो उसका मतलब क्या है, नाउ वैल्यू विल बिकम 4 इंटू 5 विच इज 20। तो एल ऑफ आई की फाइनल वैल्यू क्या हो गई आपकी अब 20। ध्यान दीजिएगा हर इटरेशन में क्या कर रहे हो आप, एल ऑफ आई की वैल्यू अपडेट कर रहे हो। हर इटरेशन में क्या है आपकी दो कंडीशन है, अगर दोनों ही कंडीशन एक्सिक्यूट होंगी तब वी विल सी क्या आउटपुट उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, नाउ जब व्हेन आई इक्वल्स टू, अब क्या हो गया, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, आई को 1 मतलब एल ऑफ आई क्या हो गया 6, एल ऑफ आई डिविजिबल बाई 2 है क्या, यस, कंडीशन बिकम्स ट्रू, अगेन ट्रू, तो कंडीशन क्या हो जाएगी फिर से ट्रू हो जाएगी। नाउ इस केस में क्या होगा 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 मीन्स इट विल बिकम्स 12। नाउ एल ऑफ आई कितना हो गया अब 12, 12 is divisible by 3, yes, condition becomes true। क्या करना है आपको 12 into 3 which is 36, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 36, यानी एल ऑफ जीरो पे कितनी है 20 और एल ऑफ वन पे कितनी हो गई है 36। नाउ अगेन सिमिलरली इट विल गो टू, जब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2, अब आई की वैल्यू 2 हो गई तो इट इज डिविजिबल बाय 2, नो, कंडीशन बिकम्स फॉल्स। नाउ इट विल गो टू दिस वन, एल ऑफ आई डिविजिबल बाय 3, यस, कंडीशन बिकम्स ट्रू, तो क्या हो जाएगा एल ऑफ आई इंटू 3, तो वैल्यू क्या हो गई आपकी अब 9 इंटू 3 विच इज 27। ओके, सिमिलरली नाउ इन दिस वन व्हेन आई इक्वल्स टू 3, तो वैल्यू क्या है आपकी 10 है, तो पहले क्या होगा 10 डिविजिबल बाय 2, यस, कंडीशन बिकम्स ट्रू, तो क्या हो जाएगी वैल्यू आपकी 10 इंटू 2 विच इज 20। नाउ इट विल सी कि 20 डिविजिबल बाय 3, नो, कंडीशन बिकम्स फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होती क्या हो जाएगा एल्स कंडीशन एक्सिक्यूट होगी, अब क्या हो जाएगा 20 इंटू 5 विच इज 100। ओके, आई होप यू आर गेटिंग कि हाउ वी आर डिटरमाइनिंग द वैल्यूज एज इटरेशन बाय इटरेशन। देन वंस द इटरेशन इज कंप्लीटेड, आपका फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन को जो डिफाइन किया गया था उसकी सारी स्टेटमेंट्स भी फिनिश हो चुकी हैं, तो अगेन इट विल गो टू लाइन नंबर 10। तो जो भी इटरेशंस फॉलो हो रही थी आपकी 3 4 5 6, अब क्या हो रहा था उसके बाद लूप आपका चलता रहेगा जब तक इटरेशन खत्म हो जाएगी, आफ्टर इटरेशन ऑफ अ प्रोग्राम इट विल गो टू लाइन नंबर 10 अगेन, क्यों, क्योंकि 10 से ही फंक्शन आपका कॉल हुआ था। आफ्टर लाइन नंबर 10 व्हाट इज डूइंग, लाइन नंबर 11 पे कॉल होगा, अब क्या होगा फॉर आई इन एल, तो अब आई की वैल्यू क्या है, अब फाइनल पहले एल की वैल्यू क्या है आपकी, एल की वैल्यू है आपकी 20, 36, 27 एंड 100। अब क्या करना है आपको, एल की हर एक वैल्यू को प्रिंट करना है एंडेड बाय हैश, तो इसका मतलब क्या है लाइन नंबर 12 पे क्या आउटपुट आएगा आपका, ये इटरेशन आपकी कितनी बार चलेगी, ये आपका प्रोग्राम चलेगा 4 बार, जो फॉर लूप है वो आपको 4 बार चलेगा, हर बार क्या आउटपुट आएगा, पहले 20 हैश, देन 36 हैश, then 27 hash, then 100 hash, and this will be the your output of this particular program। I hope you got the idea कि कैसे हमने डिटरमाइन किया है आउटपुट, क्योंकि पेपर में जरूरी नहीं है कि आपको ऑप्शंस मिले ही, हो सकता है आपको ऑप्शन ना भी मिले, तो उस सिनेरियो में यू नीड टू नो कि कैसे प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करना है। नाउ इफ यू विश यू कैन रन दिस ऑन द आईडी, यू विल सी कि आउटपुट क्या है आपका, सिमिलर आउटपुट आया जो अभी हमने आप डिटरमाइन किया था। Hence for this one option number C is the correct one। Okay then, let's see the next one। So in this particular question, आपको एक फाइल गिवन है जिसका नाम क्या है rhymes.txt, उसको कुछ कंटेंट गिवन है। Now based on the content you need to determine कि इस particular कोड का क्या आउटपुट आएगा। तो let's see the code line by line and then we'll try to figure out what will be its output based on the each and every execution of each and every line। नाउ फाइल लाइन नंबर 1 में क्या है, आप क्या कर रहे हो, एक फाइल ओपन कर रहे हो rhymes.txt, जो भी आपका इसका कंटेंट क्या है आपका, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। तो सिंस आपने इसके अंदर कोई एक्सेस मोड पास नहीं किया तो डिफॉल्ट मोड क्या हो गया आपका, रीड मोड। ओके, आफ्टर लाइन नंबर 1 इट विल गो टू लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 2 पे क्या है, यू आर यूटिलाइजिंग रीड लाइंस फंक्शन। तो रीड लाइन फंक्शन काम कैसे करता है आपका, जो भी कंटेंट अवेलेबल होगा फाइल के अंदर उसको इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग इट विल एक्सेस। तो अब एल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इट विल इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, और लिस्ट की क्या होगा, हर एक एलिमेंट क्या होगा आपका, हर एक लाइन ऑफ द फाइल। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, वैल्यू वुड बी जैक एंड जिल, देन सेकंड एलिमेंट क्या होगा आपका लिस्ट का, वेंट अप द हिल। ठीक है, इट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। तो लाइन नंबर 2 पे क्या है, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, फॉर लाइन नंबर 3 में क्या है, आपको एक फॉर लूप है जिसके अंदर क्या है, फॉर आई इन एल। तो आई की फर्स्ट केस में दो इटरेशन चलेंगी आपकी, फर्स्ट केस में क्या होगी वैल्यू जैक एंड जिल,
तीसरे केस में क्या होगी, वेंट अप द हिल। नाउ लाइन नंबर आई की वैल्यू में लिख लेता हूं आपके लिए। फर्स्ट केस में क्या है, जैक एंड जिल। सेकंड केस में क्या है, वेंट अप द हिल। ओके, नाउ बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ आई विल ट्राई टू डिटरमाइन कि क्या आउटपुट आपका आ रहा है। नाउ लाइन नंबर 4 में क्या है, आई डॉट स्प्लिट। तो स्प्लिट फंक्शन कैसे काम करता है आपका, इट विल गिव यू लिस्ट ऑफ वर्ड्स। तो फर्स्ट केस में क्या आएगा आउटपुट आपका, जैक फॉलोड बाय एंड देन फॉलोड बाय जिल। ओके, देन सेकंड इटरेशन में क्या आएगा आपका, एस की वैल्यू वेंट, फर्स्ट सेकंड वर्ड इज अप, थर्ड वर्ड वुड बी द, एंड फोर्थ वर्ड वुड बी द हिल। नाउ आपको लाइन नंबर 5 में क्या काम करना है, आपको लेंथ ऑफ एस प्रिंट करानी है। तो फर्स्ट केस में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं आपके पास, 1 2 3, यानी कितने एलिमेंट हैं एस के अंदर, वी हैव 3 एलिमेंट्स फॉलोड बाय हैश। सेकंड केस में क्या होगा, एच के अंदर कितने वर्ड्स हैं आपके पास, 4 वर्ड्स फॉलोड बाय हैश। तो उस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा आपका, 3 हैश 4 हैश। तो बेसिकली प्रोग्राम कर क्या रहा है आपका, हर लाइन के अंदर कितने वर्ड्स हैं उनको काउंट कर रहा है और उनको फिर डिस्प्ले करा रहा है विद एंड पैरामीटर वैल्यू हैश। सो फॉर दिस वन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। वैल्यू क्या है आपकी, 3 हैश 4 हैश। ओके देन लेट्स सी द नेक्स्ट वन। So in this particular question, a code has been given to you and it has been asked what will be the output of this particular code. So in order to solve this one, first let's do the line numbering, then we'll try to figure out what each and every line is doing. तो लाइन नंबर 1 में क्या है आपका, एक डिक्शनरी डिफाइन करी गई है, इसके अंदर 1 2 and 3 in digits are the keys and 1 2 3 in a strings are your values. फिर सेकंड लाइन में क्या है, एक एम्प्टी लिस्ट डिफाइन करी गई है ना। लाइन नंबर 3 में क्या है, डी डॉट आइटम्स के अंदर क्या कर रहे हो आप, के कॉमा वी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी रिमेंबर या यू नीड टू बी अवेयर कि डी डॉट आइटम्स की वैल्यू क्या आएगी। तो डी ऑफ आइटम्स विल बी इन द लिस्ट ऑफ टपल। तो टपल की वैल्यू क्या आएगी, 1 कॉमा 1 in string, then followed by another tuple 2 comma 2, and then followed by again another element which is 3 comma 3. Okay, now it will be list of tuples. Okay, now इस केस में k की वैल्यू क्या होगी, 1 2 and 3, and v की वैल्यूज क्या होंगी आपकी। तो लेट मी डिटरमाइन, k की वैल्यू क्या है, 1 2 3, और v की वैल्यू क्या है आपकी, 1 2 and 3। ठीक है, नाउ व्हाट यू नीड टू डू, इन लाइन नंबर 4 यू आर चेकिंग, आपका लूप कितनी बार चलेगा आपका, 3 बार। नाउ हर इटरेशन में क्या चेक कर रहे हो आप, फर्स्ट इटरेशन में क्या चेक कर रहे हो कि v ऑफ 0 इक्वल्स टू t है, तो अगर तो क्या करना है आपको, अपेंड करना है k को लिस्ट के अंदर। तो सिमिलरली कैपिटल T किस केस में है हमारे पास, इस केस में और इस केस में, आपको अपेंड क्या करना है, 2 और 3। तो लिस्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट 2 ऐड होगा, फिर देन 3 ऐड होगा। देन एट लाइन नंबर 6 व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू प्रिंट 2 कॉमा 3। If you run this one on the ID, you will see कि output क्या है आपका, 2 3। Hence for this one option number C is the correct one. Okay then let's see the next one. So in this particular question आपको एक file given है which is named as rhymes.txt. So कुछ content given है. Now based on this content you need to find the output of this particular Python code. So in order to solve this one, let's do first line numbering, then we'll try to figure out what each and every line is doing. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लाइन नंबर 1 में क्या है आपका, आप फाइल ओपन कर रहे हो विच इज rhymes.txt। सिंस कोई एक्सेस मोड प्रोवाइड नहीं किया गया तो बाय डिफॉल्ट मोड क्या हो गया आपका, रीड मोड। नाउ इन द लाइन नंबर 2 व्हाट विल यू आर डूइंग, यू आर रीडिंग ए कंटेंट फ्रॉम द फाइल। देखिए जब आप ओपन फंक्शन यूटिलाइज करते हो तो आप क्या देता है, आपको एक फाइल ऑब्जेक्ट देता है। इस फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से यू कैन रीड द कंटेंट ऑफ द फाइल। तो नाउ अब एस की वैल्यू क्या आएगी, एस की वैल्यू वुड बी अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या रहेगी आपकी, बा ब्लैक शेप and at the end wool। okay, now in line number 3 में क्या कर रहे हो आप you are utilizing split function। since split function के अंदर आपने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, वो क्या करेगा, जो स्ट्रिंग के अंदर एलिमेंट्स हो गए उनको स्प्लिट कर देगा विद द हेल्प ऑफ स्पेस। तो उसका मतलब क्या है, नाउ यू विल हैव एल, एल के अंदर क्या रहेगा आपका, हर एक एलिमेंट का नाम रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बा, then second element would be again bar, then third element would be black, okay, and then go on, and at the last it would be wool followed by question mark। okay, so how many elements will list will contain,
हाउ मेनी वर्ड्स वी हैव इन दिस पर्टिकुलर फाइल। तो कितने वर्ड्स हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वी विल हैव 8 एलिमेंट्स इन द लिस्ट L। नाउ व्हाट यू नीड टू डू फॉर I इन L। तो फॉर योर कन्वीनियंस आई राइट डाउन द L वैल्यू ऑफ I। ठीक है, I क्या है अब आपका, हर एक एलिमेंट ऑफ लिस्ट। तो फर्स्ट केस में I की वैल्यू क्या होगी, BA, फिर क्या होगी अगेन स्मॉल BA, देन वी विल हैव ब्लैक, एंड देन वी विल हैव sheep। ध्यान दीजिएगा जब भी आप sheep यूज कर रहे हैं फॉलोड बाय कॉमा, ओके, देन have, एंड देन you, देन any, एंड देन एट द लास्ट इट वुड बी wool। नाउ आपको हर इटरेशन में कंडीशन चेक करनी है कि कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। नाउ फर्स्ट केस में आपकी कंडीशन क्या है कि लेंथ ऑफ आई अगर डिवाइडेड बाय 3 नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो आप क्या काम करना है, ये प्रिंट करना है। मतलब कि अगर आपकी जो वैल्यू है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है, आपको ये चेक करना है। तो कंडीशन क्या हो गई आपकी कि जो आई है आपका, जो लेंथ ऑफ आई है वो डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब देखते हैं किस किस केस में कंडीशन फॉल्स होगी। तो लेंथ क्या है इसकी 3, तो 3 केस में क्या होगी कंडीशन फॉल्स। वाई फॉल्स, बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 3। सिमिलरली इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ये कितने कैरेक्टर्स हो गए आपके 5। तो इस केस में क्या आएगा आपका, ट्रू विल बी प्रिंटेड, सॉरी ब्लैक विल बी प्रिंटेड। नाउ शीप के केस में क्या हो गया, आपके 6 एलिमेंट्स हो गए, तो इट विल ऑल्सो फॉल्स। वाई 6 एलिमेंट, बिकॉज जो कॉमा है वो भी काउंट होगा। सिमिलरली इस केस में क्या जाएगा, ट्रू, बिकॉज इट कंटेन ओनली 4 एलिमेंट्स। फॉल्स, इट कंटेन्स ऑल्सो 3 एलिमेंट्स। फॉल्स, एंड एट द एंड वूल वाला भी आपका आ जाएगा। दिस मीन इस केस में भी क्या हो जाएगी कंडीशन। नाउ जब भी कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है तो आपको क्या करना है, प्रिंट करना है आई एंड फॉलोड बाय स्पेस। तो ट्रू किस किस केस में हो रही है आपकी, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैक के केस में, तो आउटपुट वुड बी ब्लैक फॉलोड बाय स्पेस। नाउ सेकंड केस में क्या हो रहा है, हैव स्पेस, एंड द लास्ट वर्ड वुड बी वूल, तो इट विल प्रिंट दिस वन। तो आपका आउटपुट क्या आ गया, ब्लैक स्पेस हैव स्पेस वूल स्पेस। ओके, तो दिस विल बी योर आउटपुट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। So hence for this one option number B is the correct one because we have determined कि क्या इसका output आएगा। Okay then let's see the next one. So in this particular question आपको एक text file given है, इसका नाम क्या है rhymes.txt। उसका कुछ content given है। Now based on this content you need to figure out what will be the output of this particular code. So in order to solve this one, first let's do the line numbering and then we'll try to figure out what each and every line is doing. तो फर्स्ट लाइन में क्या है आपका, आप ओपन कर रहे हो फाइल rhymes.txt। सिंस आपके इस फाइल के अंदर ओपनिंग फंक्शन के अंदर कोई एक्सेस मोड नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट मोड क्या हो जाएगा आपका, रीड मोड। नाउ इन द सेकंड लाइन व्हाट आर यू डूइंग, यू आर रीडिंग ए कंटेंट ऑफ द फाइल विद द हेल्प ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट, यू आर ट्राइंग टू रीड द कंटेंट ऑफ द फाइल। तो अब एस की वैल्यू क्या आएगी आपकी, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 एंड अप टिल li followed by फुल स्टॉप। तो दिस विल बी योर कंटेंट ऑफ द फुल स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का कंटेंट क्या रहेगा आपका, पूरा जो टेक्स्ट का कंटेंट है दैट विल बिकम ए सिंगल स्ट्रिंग फॉर एस। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इन लाइन नंबर 3, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर ट्राइंग टू काउंट स्प्लिटिंग द फंक्शन। तो आपने अगर आप क्या कर लिया, लिस्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 फॉलोड बाय दिस वन, देन 2 एंड देन एट द लास्ट li। ओके, क्या करा आपने, हर वर्ड्स को स्प्लिट कर लिया इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ वर्ड्स। ओके, देन लाइन नंबर 4 पे क्या करना है आपको, एस डॉट काउंट ई आफ्टर 20। तो आपको क्या करना है, एस के अंदर ई को काउंट करना है आफ्टर इंडेक्स 20। तो जो लाइन नंबर 3 है डज नॉट मेक एनी यूज ऑफ, इस प्रोग्राम में इस लाइन का कोई यूज है नहीं। आपको क्या करना है, सिंपली जो एस आपकी स्ट्रिंग आई थी उस केस में आपको काउंट करना है कि ई की कितनी बार ई आ रहा है आफ्टर इंडेक्स 20। तो लेट मी काउंट द इंडेक्सिंग फर्स्ट हेयर, let's say 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो अप्रोक्सीमेटली आपका यहाँ पे आ रहा है 20। तो इंडेक्स लेट्स से दिस वन इज द 20 इंडेक्स, हो सकता है एक आध आगे पीछे हो बट मोर और लेस इट विल बी द दिस वन। ठीक है, तो नाउ यू नीड टू काउंट कि आफ्टर इंडेक्स 20 कितने नंबर ऑफ ईज आ रहे हैं आपके। तो फर्स्ट ई आ गया, ये एक आ गया, ये दो, एंड दिस वन वुड बी द थर्ड। तो आपके टोटल नंबर ऑफ ईज कितने आ रहे हैं, 3 आफ्टर इंडेक्स नंबर 20। आई होप यू गॉट द आइडिया कि कैसे हमने इवेल्युएट करा है लाइन बाय लाइन।
एंड देन विल विद द हेल्प ऑफ काउंट फंक्शन वी वर एबल टू काउंट कि कितने नंबर ऑफ ईज आ रहे हैं आफ्टर a particular index. So for this one, option number C is the correct one. Okay then, let's see the next one. So in this particular question, a Python code has been given to you and it has been asked what will be the output of this particular code. As usual, in order to determine the output of a particular code, first of all, we need to do the line numbering. And in the case of user-defined function, we need to write the flow of execution of the program. Why? Because with the help of flow of execution, it becomes easy कि कौन सा step पहले execute हो रहा है and then we will be able to determine कि क्या output किस sequence में आएगा. Now the first thing first, it will go to line number one. Line number one पे क्या है आपका एक variable define है, इसकी value क्या है v equals to 25. Now it will go to line number two. Line number two पे क्या है function definition है. It will check कि function define हुआ है और उसको क्या करेगा execute नहीं करेगा पर memory में note down कर लेगा. Now after this one it will go to line number 7. Line number 7 पे क्या कर रहे हो आप? You are printing v की value कितनी है आपकी 25 followed by star. क्यों स्टार आया आपका? क्योंकि इसके अंदर कोई और पैरामीटर्स है नहीं, कोई और वेरिएबल्स है नहीं और एंड की वैल्यू क्या दे रखी है आपने पैरामीटर की स्टार. नाउ इट आफ्टर दिस इट विल गो टू लाइन नंबर 8. 8 पे क्या होगा? फंक्शन आपने कॉल कर लिया और क्या आर्ग्यूमेंट दिया आपने? एक्सक्लेमेटरी साइन. नाउ आफ्टर दिस वन इट विल गो टू लाइन नंबर 2. ओके, लाइन नंबर 2 पे क्या है आपका फंक्शन डेफिनेशन है. इस केस में क्या होगा? कैरेक्टर की वैल्यू विल बी मैप टू एक्सक्लेमेटरी साइन. ठीक है, यहां तक क्लियर है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन. देन नेक्स्ट नंबर लाइन पे क्या करा आपने? v इक्वल्स टू 50. आपने एक लोकल वेरिएबल ले लिया v इक्वल्स टू 50. ध्यान दीजिएगा, जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिफाइन है कैपिटल V, दिस इज योर लोकल वेरिएबल. ये क्या है आपका? लोकल वेरिएबल. यानी कि अगर इस वैल्यू को आप अपडेट करोगे फंक्शन के अंदर तो जो बाहर की वैल्यू है उस पर कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज ये वैल्यू क्या है आपकी? ग्लोबल. और ये वैल्यू क्या है आपकी? लोकल. हाउएवर अगर आप यहाँ लोकल की जगह ग्लोबल कीवर्ड यूज करते तो उस सिनेरियो में सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो जाता. वी विल सी इट लेटर. ओके, नाउ आफ्टर लाइन नंबर 3 इट विल गो टू लाइन नंबर 4. लाइन नंबर 4 पे क्या है आपका? लाइन नंबर 4 पे यू नीड टू प्रिंट v. ठीक है, क्या प्रिंट करना है आपको? पहले मैं आउटपुट यहां लिख लेता हूं. फर्स्ट अब तक आउटपुट क्या आ चुका है आपका? 25 स्टार. यू नीड टू प्रिंट v फॉलोड बाय एंड ऑफ ch. तो v की वैल्यू कितनी है अभी आपकी? 50. इट विल फॉलोड बाय एक्सक्लेमेटरी साइन. वाई एक्सक्लेमेटरी साइन? बिकॉज ch की वैल्यू क्या है आपकी? एक्सक्लेमेटरी साइन. ओके, आफ्टर लाइन नंबर 4 इट विल गो टू लाइन नंबर 5. लाइन नंबर 5 पे क्या कर रहे हो आप? v की वैल्यू v इंटू 2. यानी कि v की वैल्यू क्या कर रहे हो आप? 50 इंटू 2 विच इज 100. Now after line number 5 it will go to line number 6. line number 6 पे क्या कर रहे हो? print v. अब v की वैल्यू कितनी है आपकी? 100 followed by and equals to ch. Now अब आपकी फंक्शन की स्टेटमेंट सारी फिनिश हो चुकी हैं. Now after line number 6 it will go to जहां से फंक्शन आपका कॉल हुआ था यानी लाइन नंबर 8 पे. Now after line number 8 it will go to line number 9. लाइन नंबर 9 पे क्या है आपका? सिंपली print v. लेकिन ध्यान दीजिएगा v की वैल्यू 100 थी फंक्शन के अंदर. आउटसाइड द फंक्शन इट इज स्टिल v की वैल्यू कितनी है आपकी? 25. तो दिस विल बी योर करेक्ट आउटपुट. वैल्यू क्या है आपकी? 25 इंटू स्टार 50 exclamatory sign 100 exclamatory sign and 25. If you wish you can run this one on ID and you can cross check कि जो आपने आउटपुट डिटरमाइन किया है वो सिमिलर आउटपुट आपका आया है या नहीं. Hence for this one option number A is the correct one because this is the just output जो हमने भी डिटरमाइन किया है. Okay then let's see the next one. So in this particular question आपको एक टेक्स्ट फाइल गिवन है which is named as rhymes.txt. उसका कुछ कंटेंट गिवन है आपको good morning madam. And then based on this content you need to determine what will be the output of this Python code. So as usual in order to solve this one first of all we need to do the line numbering. Then based on the line numbering we will try to figure out what will be the execution of each and every line. Okay, so first thing first line number 1 में क्या है आपका? ओपन rhymes.txt. तो इसका मतलब क्या है? यू आर ट्राइंग टू ओपनिंग ए फाइल rhymes.txt. सिंस कोई एक्सेस मोड प्रोवाइडेड नहीं है तो डिफॉल्ट मोड क्या हो गया आपका? रीड मोड. ओके, तो डिफॉल्ट मोड क्या हो गया आपका? रीड मोड. नाउ इन द लाइन नंबर 2 इट इज सेइंग f डॉट रीड. अब f डॉट रीड का क्या काम करेगा आपको? इट विल जो फाइल ऑब्जेक्ट आपको मिला है f उसकी हेल्प से यू विल बी एबल टू रीड द कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रिंग. तो ये क्या बन जाएगा? f डॉट रीड विल गिव यू स्ट्रिंग विच इज गुड मॉर्निंग मैडम. नाउ स्प्लिट फंक्शन क्या काम करेगा आपको? जो स्ट्रिंग गिवन है आपको उसको लिस्ट ऑफ वर्ड्स में कन्वर्ट कर देगा. तो दैट मींस एल की वैल्यू क्या आएगी? एट द लास्ट इट वुड बी गुड. फर्स्ट एलिमेंट वुड बी गुड, देन सेकंड एलिमेंट वुड बी मॉर्निंग एंड द लास्ट एलिमेंट वुड बी मैडम. ओके, तो स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा आपको? लिस्ट ऑफ वर्ड्स देगा. नाउ इन लाइन नंबर 3 इट इज सेइंग फॉर w इन l.
दैट मीन्स इट इज ट्राइंग टू ट्रेवर्स ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द एल। तो फर्स्ट केस में डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी आपकी, गुड। सेकंड केस में क्या वैल्यू आएगी इसकी, मॉर्निंग। एंड द लास्ट केस में क्या आएगी इसकी, मैडम। ओके, नाउ इफ यू सी द लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 4 थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। फर्स्ट थिंग इट इज सेइंग कि डब्ल्यू डॉट लोअर, तो यानी कि डब्ल्यू डॉट लोअर की क्या वैल्यू होगी। अब हमें कंपेयर करनी है कि जो डब्ल्यू डॉट लोअर की वैल्यू है वो डब्ल्यू को जब आप रिवर्स करोगे, ये क्या कर रहा है आपको स्लाइसिंग में रिवर्स कर रहा है, रिवर्स करने के बाद फिर लोअर कर रहे हो, तो यू नीड टू क्रॉस चेक कि दोनों वैल्यू अगर बराबर है तब हमारी लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट होगी। तो फॉर दैट वी नीड टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर्सल ऑफ इट। रिवर्सल ऑफ इट करने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, उसको लोअर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में लोअर क्या आ गया आपका, जी डबल ओ डी। ना उसका रिवर्स क्या आ जाएगा आपका, डी डबल ओ जी। ठीक है, तो उसका रिवर्स क्या हो गया आपका, डी डबल ओ जी। ना इस केस में क्या हो गया आपका, मॉर्निंग। और इस केस में क्या हो जाएगा आपका, जी एन आई एन आर ओ एम। ना इस केस में क्या हो गया, एम ए डी ए एम। और इस केस में भी वापस क्या हो जाएगा, रिवर्स इसका एम ए डी ए एम। तो ध्यान दीजिएगा, अब आपका क्वेश्चन क्या है कि लाइन नंबर 4 में क्या करना है आपको, अगर दोनों वैल्यू बराबर आ रही है, यानी कि जब आप लोअर कर रहे हो और रिवर्स करने के बाद लोअर कर रहे हो, अगर दोनों वैल्यू बराबर आ रही है तो क्या करना है आपको, डब्ल्यू को प्रिंट कराना है। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या है आपकी, डब्ल्यू की वैल्यू स्टिल इज मैडम। तो वैल्यू क्या प्रिंट आएगा आपका, आउटपुट, आउटपुट वुड बी मैडम। ठीक है, इन द फर्स्ट कैरेक्टर वुड बी द कैपिटल केस। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट कैरेक्टर क्या है आपका, कैपिटल केस। आपको स्मॉल केस में प्रिंट नहीं कराना। ओके गाइस, आई होप यू गॉट द आइडिया कि कैसे इवेल्युएट करना है कोई क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू द डिटरमाइनिंग द आउटपुट ऑफ द पर्टिकुलर कोड। नाउ फॉर दिस वन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। Okay then, let's see the next one. So on this particular question, a text file which is named as rhymes.txt has been given to you. उसका कुछ कंटेंट गिवन है एंड बेस्ड ऑन दिस कंटेंट आपको एक कोड गिवन है और आपसे पूछा गया है कि इस कोड का क्या आउटपुट आएगा। इफ यू सी दिस कोड केयरफुली तो आप देखेंगे जो लास्ट की दो लाइंस हैं आपकी इफ कंडीशन के साथ, ये दोनों ही लाइंस क्या है आपकी आउटसाइड द स्कोप ऑफ द फॉर लूप। ये क्या है, आपके लूप से बाहर जा रही है। ये बेसिकली हुआ क्या है इस पेपर के अंदर, ये क्वेश्चन क्या है, मिसप्रिंट हो गया। तो हेंस फॉर दिस वन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नाउ लेट्स व्हाट विल डू, वी विल सी अगर ये हमारा करेक्ट कोड होता तो उस केस में हमारा क्या आउटपुट आता। For in order to do the so, first of all, let's do the line numbering. Then once we done the line numbering, then we'll try to see each and every line and try to figure out what will be the output of this particular code. तो अभी क्या करा है मैंने, इन दोनों लाइन को स्कोप में ला दिया है for loop के, so that we will be able to get the answer. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लाइन नंबर 1 में क्या है, आपने फाइल ओपन कर ली rhymes.txt, सिंस नो एक्सेस मोड इज पास तो डिफॉल्ट मोड क्या हो गया आपका, रीड मोड। नाउ द सेकंड लाइन है l इक्वल्स टू f डॉट रीड लाइन। तो अब l की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इट विल बी कंटेनिंग टू स्ट्रिंग्स। एक लिस्ट होगी, इसके अंदर दो स्ट्रिंग्स होंगी आपकी। स्ट्रिंग की वैल्यू क्या होगी आपकी, हिकरी डिकरी डॉग। फर्स्ट केस में क्या होगी, फर्स्ट स्ट्रिंग क्या होगी, हिकरी डिकरी डॉग। यानी कि क्या मिलेगा आपको, स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ ए, जो लाइन इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रिंग। तो नेक्स्ट क्या होगी, द माउस वेंट अप द क्लॉक। ओके, नाउ व्हाट विल डू इन द थर्ड लाइन, एक्स आपको एक लिस्ट गिवन, इसके अंदर दो वैल्यूज हैं द और ऑफ, यानी दो स्ट्रिंग आपको गिवन फॉर आई इन एल। तो अब आई की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट केस में इट विल बी हिकरी डिकरी डॉग। ठीक है, लेट्स से हिकरी डिकरी डॉग। एंड सेकंड केस में क्या होगी, सेकंड इटरेशन में द क्लॉक, यानी कि जो सेकंड लाइन है आपकी टेक्स्ट फाइल की। नाउ इट इज सेइंग इन लाइन नंबर 5 फॉर डब्ल्यू इन आई डॉट स्प्लिट। अब क्या करना है आपको, आई डॉट स्प्लिट करना है, फर्स्ट इटरेशन की बात कर रहा हूं मैं अभी। तो आई डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट इटरेशन में, लेट्स से आई डॉट स्प्लिट की वैल्यू क्या होगी, सॉरी इस केस में। तो आई डॉट स्प्लिट क्या होगा फर्स्ट केस के अंदर आपका, हिकरी देन डिकरी एंड देन डॉक। ठीक है, तो अब W की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट केस में, हिकरी देन डिकरी एंड देन डॉक। सिमिलरली सेकंड केस में क्या होगा, आई डॉट स्प्लिट की वैल्यू फर्स्ट केस में हो जाएगा द माउस वेंट अप द क्लॉक, यानी कि आपकी 6 स्ट्रिंग्स बनेंगी विच इज दिस वन, द माउस वेंट अप द क्लॉक। अब क्या चेक करना है आपको, इफ W इन X, यानी कि आपको चेक करना है हर एक वर्ड को। फर्स्ट केस में चेक करोगे आप हिकरी डिकरी डॉक, और चेक करोगे कि वो X के अंदर लाइक करता है या नहीं। तो आपको एट द एंड क्या करना है, पूरे स्ट्रिंग के अंदर, पूरी प्रोग्राम के अंदर, कि जो आपकी कंटेंट गिवन है टेक्स्ट फाइल का, वो एक्स के अंदर लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा। तो फर्स्ट केस में क्या है, हिकरी हिकरी लाइक कर रहा है क्या एक्स के अंदर, नहीं। डिकरी कर रहा है क्या, नहीं। डॉग कर रहा है क्या, नहीं। सिमिलरली कैपिटल टी एच ई कर रहा है क्या, नहीं।
ध्यान दीजिएगा, इट इज कैपिटल टी नॉट स्मॉल। स्मॉल होता तो इट विल बी राइट वन। ठीक है, माउस भी नहीं है आपका, वेंट भी नहीं है, अप, और फाइनल क्या आ रहा है आपका, द आ रहा है। तो द आ रहा है तो क्या होगा आपका, द प्रिंट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द लाइन नंबर 7 और एंडेड बाय स्टार। ठीक है, तो दिस विल बी योर आउटपुट। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रोग्राम बेसिकली कर क्या रहा है, ये एक एक वर्ड को पिक कर रहा है टेक्स्ट फाइल के, और हर वर्ड को चेक कर रहा है कि जो आपकी गिवन लिस्ट है एक्स, उसमें वो वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या कर रहे हो, वर्ड को आप प्रिंट करा रहे हो फॉलोड बाय स्टार। ओके, सो फॉर दिस वन आई ऑलरेडी टोल्ड यू आंसर वुड बी द ऑप्शन नंबर डी। बट इफ वी सी कि जो हमने अगर कोड को करेक्ट करें तो उस केस में ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस वन। ओके, ओके देन लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर गिवन है, और आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द रिलेटिव पाथ ऑफ द फाइल, जो कि फाइल का नाम क्या है आपका, ट्रांजेक्शन डॉट dat। सो इन ऑर्डर टू आंसर दिस वन यू नीड टू बी अवेयर ऑफ टू थिंग, व्हाट इज रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एब्सोल्यूट पाथ क्या हो गया, बेसिकली आपका कंप्लीट एड्रेस ऑफ अ फाइल। जैसे आप देखते होगे ना आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सी ड्राइव से शुरू होता है, तो दैट विल बी स्टार्टिंग ऑफ द रूट डायरेक्टरी। तो सी ड्राइव जनरली क्या होती है आपकी, रूट डायरेक्टरी, वहां से आपके स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है डायरेक्टरी का। सिमिलरली इन द केस ऑफ द रिलेटिव, रिलेटिव पाथ क्या है आपका, करंट वर्किंग डायरेक्टरी पे बेस्ड होता है। ओके, नाउ एब्सोल्यूट पाथ की अगर मैं बात करूं तो ये क्या लेता है आपका, फुल पाथ लेता है फ्रॉम द सी ड्राइव। ऑन द अदर एंड रिलेटिव पाथ क्या लेता है आपका, जिस जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उससे नेक्स्ट लेवल के जो फोल्डर है वहां से वो स्टार्ट करता है। तो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। तो सपोज द वर्किंग वर्किंग डायरेक्टरी इज माई कंपनी। तो ये क्या दे रखा है आपको, करंट वर्किंग डायरेक्टरी दे रखी है विच इज माई कंपनी। आपको बताना है रिलेटिव पाथ ऑफ ट्रांजेक्शन डॉट डीएटी। जैसे कि मैंने क्या बताया आपको, अगर इसमें एब्सोल्यूट पाथ पूछा जाता तो क्या होता है आपका, माई कंपनी से स्टार्ट होता अकाउंट्स एंड ट्रांजेक्शन डॉट डीएटी। लेकिन रिलेटिव पाथ पूछा है तो क्या आएगा आपका, अकाउंट्स एंड ट्रांजेक्शन डॉट डीएटी। हेंस फॉर दिस वन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, रिलेटिव पाथ के अंदर क्या करते हैं आप, जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसको इंक्लूड नहीं करते। बट एब्सोल्यूट पाथ के अंदर क्या करते हो आप, जो स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्किंग डायरेक्टरी है, ये जो रूट डायरेक्टरी है आपको उससे इंक्लूड करके टेल end of the file. Okay then, let's see the next one. So in this particular question, आपको एक Python कोड गिवन है और आपसे पूछा गया है कि इसका क्या आउटपुट आएगा। As usual, in order to answer this one, first let's do the line numbering. Then based on the content or the line numbering, we will see what will be the output of this particular code. तो लाइन नंबर 1 के अंदर आप देखोगे तो आपके तीन स्टेटमेंट्स गिवन है। लाइन नंबर 1 इज ऑलरेडी मल्टी लाइन स्टेटमेंट। तो फर्स्ट केस में क्या, s इक्वल्स टू uvw, यानी एक स्ट्रिंग गिवन है आपको। नाउ कंटेंट इज l इक्वल्स टू 10 20 एंड 30, और एक एम्प्टी डिक्शनरी गिवन है। n इक्वल्स, लाइन नंबर 2 इज n इक्वल्स टू लेंथ ऑफ s, यानी लेंथ ऑफ s कितनी हो गई आपकी 3। नाउ क्या करना है, फॉर i इन रेंज n, तो रेंज ऑफ n कितना हो गया, रेंज ऑफ 3, यानी कि i की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 1 एंड 2। Now let me write down and we will see what will be the output based on this range value. तो i की, कैपिटल I की वैल्यू क्या हो गई 0 1 और 2। अब हर स्टेटमेंट में क्या करना है आपको, d ऑफ l ऑफ i। तो उस केस में क्या करता हूं मैं, पहले l ऑफ i लिख लेता हूं। ठीक है, तो l ऑफ 0 कितना है आपका 10, देन 20 एंड देन 30। क्या करना है आपको, डिक्शनरी बनानी है आपको। इनिशियली क्या डिक्शनरी है आपकी, एम्प्टी। क्या करना है आपको, आई की जो वैल्यू है आपकी, लेट मी डू द इंडेक्सिंग फॉर दीज टू वैल्यूज 0 1 एंड 2, 0 1 एंड 2। यानी क्या करना है आपको, आपको की बनानी है किसको, एल ऑफ आई को, और उसकी वैल्यू क्या होगी एस ऑफ आई। तो जब आई की वैल्यू 0 है तो उस केस में 10 वुड बी द योर की एंड इट्स वैल्यू वुड बी यू। ठीक है, इस केस में क्या होगा, ऑलरेडी 10 और u तो है ही आपके पास। नाउ 20 विल बी द की एंड v will be the value. Similarly, इस केस में क्या होगा, नाउ 10 would be the key and 20 would be the key इस केस में, and at the last 30 would be the key and w would be the value. Okay, so basically क्या कर रहा है, लाइन 1 to 4 तक आप क्या कर रहे हो, एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हो जिसके अंदर लिस्ट के एलिमेंट्स विल बी द की एंड द स्ट्रिंग के एलिमेंट्स क्या होंगे आपके वैल्यू रेस्पेक्टिवली। नाउ लाइन नंबर 5 में क्या है आपका, फॉर k, v in d dot items। नाउ d dot items क्या देता है आपको, लिस्ट ऑफ टपल, लिस्ट ऑफ टपल। अब टपल क्या रहता है आपका, बेसिकली की वैल्यू पेयर। यानी अगर मैं बात करूं डी डॉट आइटम्स की, तो उसका आउटपुट किस तरह से होता है, डी डॉट आइटम विल बी लाइक दिस, 10 u, 20 v एंड 30 w। दिस विल बी द डी डॉट आइटम्स विल गिव यू। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, k, v इन डी डॉट आइटम्स, यानी k की वैल्यू क्या होगी आपकी 10 20 एंड 30, v की वैल्यू क्या होगी u v एंड
W। तो क्या करना है आपको, K कॉमा V को प्रिंट कराना है, यानी कि की और वैल्यूज को प्रिंट कराना है, विच आर सेपरेटेड बाय स्टार। तो क्या आएगा आपका आउटपुट फर्स्ट केस में, 10 इंटू यू, ठीक है, सेपरेटेड बाय एंड बाय क्या है आपका, कॉमा। सिमिलरली इस केस में क्या आएगा, 20 इंटू वी एंडेड बाय कॉमा। सिमिलरली 30 इंटू डब्ल्यू एंड सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। So this will be your required output. If you wish, you can run this one on the ID. You will get the same output. Now coming back to the question, let's see the options. If you see the option, none of the option is the correct one. Why? Because किसी भी ऑप्शन कॉमा से एंड नहीं हो रहा आपका। एट द एंड क्या होना चाहिए आपका, कॉमा जरूर आना चाहिए। वाई? बिकॉज आपका जो लास्ट लाइन है उसके अंदर एंडेड बाय कॉमा। तो दिस इज वन इज द नॉट द करेक्ट कोड। ओके, जिसको जो बेसिकली जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर कोई भी इनमें से नहीं है। हाउएवर द मोस्ट सुटेबल वुड बी द ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज इट इज फॉलोइंग द क्या है आपका 10 स्टार यू फॉलोड बाय कॉमा, 20 स्टार वी फॉलोड बाय कॉमा। हो सकता है जो प्रिंट करा रहे हो उस सिनारियो में क्या हो गया होगा, ये कॉमा मिस आउट हो गया होगा। ओके, okay then let's see the next one. So in this particular question, a Python code has been given to you and it has been asked what will be the output of this particular code. So as usual, in order to answer this one, first of all, let's do the line numbering. Then we'll try to figure out what each and every line is doing. तो लेट्स लाइन नंबर वन क्या है आपका, एक लिस्ट है, इसके अंदर क्या वैल्यू है 10 20, देन L1 है आपकी 30 40, देन L2 है आपकी 50 60। नाउ लाइन नंबर 4 क्या कर रही है आपकी, L के अंदर क्या अपेंड कर रहे हो आप, L1। तो क्या कर रहे हो आप 10 20, सिंस यू आर अपेंडिंग तो क्या होगा आपका L1 वुड बी एडेड एज एन सिंगल एलिमेंट। तो L1 की वैल्यू क्या है आपकी 30 एंड 40। तो 30 एंड 40 विल बी एडेड एज ए सिंगल एलिमेंट इन द लिस्ट। ओके, ये तो क्या बन गई आपकी अब ये लिस्ट के अंदर लिस्ट। नाउ इट इज ऑन द लाइन नंबर 5, लिस्ट को क्या कर रहे हो आप, एक्सटेंड कर रहे हो। तो एक्सटेंड के केस में क्या होगा आपका, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द L2 विल बी एडेड एज एन एलिमेंट ऑफ द L। अपेंड के केस में क्या होता है, एज ए सिंगल एलिमेंट ऐड होता है, और एक्सटेंड के केस में क्या होता है आपका, सिंगल एलिमेंट सिंगल सिंगल करके एलिमेंट ऐड होते हैं। तो दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ L। If you wish, you can run this one on the ID. You will see we will get the same output as the we deduced. So for this one, option number D is the correct one. Okay then, let's see the next one. Now this is the last section of the CBSE midterm paper 2021. And in this section, a case study has been given to you. Or on the basis of this case study, you need to answer 6 questions. Now let's see the case study and then we'll try to figure out what will be the answer of each and every question. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको क्या गिवन है, एक इंटर्न, एक निशा है विच इज एन इंटर्न इन कंपनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। व्हाट इज शी इज डूइंग, शी इज डेवलपिंग ए प्रोजेक्ट यूजिंग द सीएसवी मॉड्यूल। यानी कि बेसिकली केस स्टडी किस पे बेस्ड है आपकी, सीएसवी मॉड्यूल के ऊपर। शी हैज ऑलरेडी डन द पार्शियली, आपने पार्शियली काम कर चुकी है ऑलरेडी। सम स्टेटमेंट्स शी हैज ऑलरेडी लेफ्ट आउट विच इज शी इज नॉट कॉन्फिडेंट। Now this line also contains some errors. Now you need to help her in completing the code to read. First of all क्या करना है आपको, रीड करना है desired CSV फाइल। तो फाइल का नाम क्या है आपका, employee.csv, which is कंटेंट क्या है उसका ये। ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लाइन नंबर स्टेटमेंट अगर 1 देखोगे आप तो ये क्या गिवन है आपको, import कैपिटल CSV, which is not possible क्योंकि आपके CSV क्या है, मॉड्यूल इन स्मॉल केस। नाउ क्या कर रहे हो आप, ओपन कर रहे हो फाइल को, फाइल का नाम क्या है आपका employee.csv। ठीक है, तो क्या करोगे आप employee.csv को, सिंस यू वांट इनटू ओपन इनटू रीड मोड तो आर मोड आ जाएगा आपका। नाउ स्टेटमेंट, सिंस यू रीडिंग द फाइल तो क्या करोगे आप, रीडर करोगे, और फाइल हैंडलर का नाम क्या है आपका, स्टेटमेंट नंबर 2 में गिवन है फाइल। ठीक है, फॉर आर इन रेंज ईयर, दिस इज द नॉट करेक्ट। क्या करोगे आप, फॉर आर इन ईयर। नाउ व्हाट यू वांट टू एक्सेस अकाउंट्स, तो यू आर चेकिंग कि कोई वैल्यू अकाउंट्स कब आएगी, तो कौन सी लेवल पे है वैल्यू आपकी, 0 1 और 2 पे। तो यू विल बी चेकिंग आर ऑफ 2। Okay, so you will be checking R of 2. Now for statement number 6, we need to see the question key, what is exactly it is demanding. Then we will try to figure out क्या उसका question होगा. Okay, now let's see the question by question and then try to figure out what will be the right answer for each and every question. Now the first one है, Risha gets an error for the module name. ठीक है, module name का क्या आएगा, it would be CSV. ठीक है, it would be small case CSV. So option number B is the correct one for this one. Now for the question number 51, it is asking missing code for the blank spaces in the statement number 2. अगर statement number 2 की मैं बात करूं तो missing code क्या रहेगा आपका, employee.csv followed by r. तो employee.csv followed by r. So option number A is the correct one for this one. We cannot use write mode. WB and RB is for your binary files.
Now for question number 52, let's see the choose the function name with parameter that should be used in statement number 3. तो स्टूडेंट 3 में क्या करना है आपको आपको कंटेंट रीड करना है. तो फॉर सीएसवी फाइल वी हैव ओनली वन फंक्शन विच इज रीडर. तो रीडर फंक्शन किस में है आपका ऑप्शन नंबर अगेन फॉर दिस वन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन देन. Nisha gets an error in statement number 4. तो you need to correct this right statement. तो statement 4 में क्या आएगा आपका range function you can utilize with the er function. तो इस केस में क्या आएगा for r in er. Hence in this case option number A is also correct for this one as well. Okay. Now let's see the 54 one. Suitable code for the blank space for rows third property. तो row third property का मतलब क्या हो गया 0, 1 and 2. तो what you need to do you need to access second index. तो which will be r of 2. तो क्या वैल्यू आएगी इसकी r of 2 यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन फॉर दिस वन. नाउ लेट्स सी द लास्ट वन देन फॉर स्टेटमेंट नंबर 6 टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम एंड कॉरस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट. तो एम्प्लॉय नेम क्या है आपका r of 1 और क्या चाहिए आपको उसका डिपार्टमेंट नेम. तो डिपार्टमेंट नेम क्या हो गया आपका r of 2 यानी कि स्टेटमेंट नंबर 6 पे क्या करना है आपको r1 और r2 को प्रिंट करना है. तो इस केस में ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. आई होप यू गॉट द आइडिया कि कैसे केस स्टडी क्वेश्चन को आप पिक कर सकते हो विदाउट इवन सीइंग द क्वेश्चंस. Okay guys, this was the last question of the paper. I hope this video is worth your time. If you have learned something new today, please like and share it with your friends. Okay guys then, that's it for the day. Thanks for your time.